बुझ गए ये आ गए। इधर गया एडजस्टमेंट वहीं से कर दो कम। हेलो हेलो क्या बड़ा क्या खड़ा रहा है रिमोट लाइट सिटी में। अब मोबाइल में क्या उसको बंद करिए। हेलो हेलो और थोड़ा कम करना है भूल जा रहा है लेवल कम करो हेलो माइक चेक हेलो लाइव चल रहा है। हाँ ठीक ठीक है। अब ठीक नहीं नहीं उसको छोड़ वहाँ से कर चलो ठीक है डन। हम लोग देख रहे हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा बस सेम सेम। ये है ना करेक्टेड है लाइव करते हुए बंद नहीं ना होता है। बंद नहीं होगा नहीं मैं तो ध्यान गणेश का व्यवस्था रहता है। बोल के देखो हेलो हेलो करो एक बार। हेलो चेक हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो ठीक है। हाँ हेलो डन। चलो रेडी। साउंड ठीक है ना? हाँ ठीक है सर देखो। क्या क्या चीज़ हाँ हाँ ये हम कर देते हैं। आ जाओ फटाफट इसमें राधे राधे। उसके बाद डीन को एफ कीजिए कर दीजिए। हाँ बोलेंगे कुछ थोड़े कुछ
कुछ है ही हाँ बुझ गया सही है, आज ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फटाफट आओ तुम पहले है ना? उसका लाइट जलेगा वहाँ देखो तो स्विच दो तो हाँ हाँ अब पंखा चले यार दोनों तो जल गया है जी ठीक है साइंस उधर हो गया ना और ना वो बोला नाम मैडम आ रही है। आगे देखो ये दिया गया बस स्टार्ट करा के जाना है। आओ इधर बैठो नहीं, नहीं, ठीक है। बाहर बढ़ते हैं मनीष आप इससे कनेक्ट नहीं किए हुए हैं किए रहिए आप भी करते रहिएगा ऐड। नहीं इधर हम कर देंगे अपने हिसाब से कैसे अब हटा दो कहाँ गया साहब यहाँ साहब आ जाइए साहब आप आ जाइए हम आपका फोन मिला तो फोन ही नहीं लग रहा जा फटाफट आओ इधर देखते रहो वहाँ पर कहाँ खोले हम तो आए उधर से इधर से अपना आप लोग का कैंटीन के सामने वाला गेट है। अच्छा पीला का पत्ता का वो आप उनके पीले हो रहा है विजय बाबू से कोऑर्डिनेट कर दिए तो मैडम कह रही है कि इनकी गाड़ी को रोकना चाह है तो कोऑर्डिनेट कर दीजिए तो वहाँ गार्डन को और उसको प्रोक्टर साहब को भी कह दीजिए। ठीक है चलने में तो करते हो गया छोड़िए सब होते रहते हैं। A very warm good morning to all of you. सभी आगंतुकों का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत है, खासकर our previous Vice Chancellor Ma'am Dolly Sinha Ma'am, Financial Advisor Sir Kailash Ram Ji, Dean Science Faculty Dr.
B.S. Jha sir, and our renowned registrar sir, Dr. Mustaq Ahmed sir. Additionally, I welcome Dr. Suresh Parshwan, our pension officer, and all the sitting members sitting in front of the dais. Again, a very warm good morning to all of you. वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और एक टर्म जो कि एकेडमिक में बहुत मशहूर है, and that is superannuation. But in other language we call it as retirement. So this is the term officially used to get rid of from a responsibility, from a duty, but not from a mentorship, but not from a guardianship. It continues indefinite. So this is the first lecture series come the farewell ceremony of our beloved Professor K.K. Sahu sir. With the beginning of the session, I first of all request HOD ma'am Shahnaz Zamili to have a bouquet for our respected BBC ma'am. गेट खोल दो, गेट को खुले रहो रे, समझा? गेट को खुले छोड़ दो। Thank you very much. नीचे रख दो। Now I request Dr. Aryan Jha sir to come near the dais and present a bouquet in the form of vase to Professor Kailash Ramji. Now I request Dr. Gajendra Prasad to present the vase to our Dean Science Faculty, B.S. Jha sir. Now I request Dr. Vidyanath Jha sir to come near the dais and present the vase to our registrar, Dr. Mustaq Ahmed sir. कौन सा नहीं ठीक है हमारा है तो ठीक और क्या बड़ा सुखद है। Usually bouquet dried up with due course of time, but it's the vase which may continue still longer time. So this is a symbol to show that our welcome may last longer. Now I request Dr. K.K. Sahu sir to present the vase to our resource person, इसको बंद नहीं होने दीजिए है ना ठीक है
Dr. and Professor Nankishore Sir, Province, VKS University. A very good quotation comes to mind that the value of a crown doesn't depend upon the size, but the gems assigned to it. This dice also seems to be a prestigious one in that context. But very soon we are going to lose a very precious gem named Professor K.K. Saab. We expect that the gap should be filled not by the same size or the same shine, but a respective one in the forthcoming days. Still, we will miss Hauser always. Now I request all the members sitting behind the dais to come in front and have lighted the lamp. Salam. मैडम आप हमको परमिट कीजिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। आज कम से कम कुसुम कुमार जी को अपने मैडम के साथ बैठना चाहिए। बैठनी है देखते हैं वहाँ लगना चाहिए। स्ट्रिक्ट सुझाव। हाँ आप माने सीट बनता है ये पहना से न कर तो रहा बनता। In continuation to the program, now I request Professor and Head Dr. Sana Jamil ma'am to come to the dais and address the session. Good morning, everybody all. Honorable Vice Chancellor Professor Pro VC, Professor Dolly Sinha Ma'am, and the honorary guest Professor M.K. Saha, former Vice Chancellor of Veer Kumar Singh University, Ara, and our distinguished guest Dr. Mushtaq Ahmed, Registrar of LNMU and Head of the other departments, FA of the university, and other faculty members of the department. I extend a warm welcome to everyone present in this conference hall. Thank you so much for accepting our invitation and coming over this lecture series in our department in spite of your busy schedule, and I am really privileged to have you all here. It will include more issues to address the full aspects of the topic, that is glimpses of biotechnology in crop disease management. Plant disease management is very much important for preventing productivity losses of various crops
most of the management approaches can be classified into physical, chemical and biological approaches. In 1980s, that is the golden era of biotechnology, emerged and scientists began using biotechnology as a method of transferring beneficial genes like disease resistance directly into a plant without the long process of trial and error of traditional breeding techniques. In order to manage crop disease for food security, the principles of evergreen revolution must be followed with the innovative ideas and latest biotechnological tools and methods on the vanguard. It became possible to reduce the progress of disease and keep it at an acceptable level. This topic is elaborated by Professor N.K. Saha, come from Veer Kumar Singh University, Ara. I want to tell about some feature of resource person. This resource person, Professor N.K. Saha, graduated from LNMU Darbhanga and thereafter shifted to JNU Delhi for MSc, MPhil and PhD programs. His native village is near Samastipur, hence he may be considered as a son of the soil. He has many caps of his feather, all of which are not possible to mention here because of the paucity of the time. A few important contributions of Professor Saha may be mentioned here. He did his postdoctoral research fellowship in the Department of Experimental Radiation Oncology at the University of Texas, MD Anderson Cancer Center, USA, from 2000 to 2002. Another achievement is Biotechnology National Associate Associate by Government of India at Department of Bioimmunotherapy, the University of Texas, USA, from June 99 to September 99. So many researches and achievements he gained in their whole life, which is impossible to describe here. Only he has various research experiences, mainly cell culture techniques on bacterial and viral culture, quantitative DNA fragmentation assay, genetic engineering, PCR, etc. He has also attended so many conferences and symposia national or international levels. He awarded by various awards such as Mithila Vibhuti Samman. About 46 research papers are published by Professor Saha. Not only this, so many achievements, I can't explain each and every. Lastly, I express my deep regards to all the dignitaries present in the conference hall, especially Dr. Khalid Anwar, Assistant Professor, CM Science College, media persons and photographers. Thank you. प्रतिलिपि यहाँ लगा सैनिटाइजर नहीं, स्प्रे वाला हो उस पर देने हो रहा है। Now, continuing the session, I request our renowned registrar, very respected Dr. Mushtaq Ahmed sir, to come to the dais and address the session. क्या हो गया?
साइंस क्लास विद्यालय के सम्मानित प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा साहिबा, मंच पर आज मुख्य अतिथि अपने विषय के ख्याति प्राप्त शिक्षक कुलपति वीरवर्ष यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शाह साहब, साइंस क्लास विद्यालय के डीन प्रोफेसर बी एच झा साहब, हमारे विश्वविद्यालय के एफ साहब, विश्वविद्यालय वनस्पति शास्त्र की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जमील, इस सभागार में उपस्थित सभी विभागों के अध्यक्ष, शिक्षक, छात्र छात्राएं और विशेष तौर पर मिस्टर एंड मिसेस के साहब। जबकि साइंस ये कह रहे थे कि आज के दिन भी दोनों आदमी को एक जगह बैठना चाहिए, तो मैं बहुत गंभीर चिंता में था कि चूंकि साइंस के डीन ये बात कह रहे हैं कि आज तक आप लोग एक साथ नहीं रहे, तो आपको आज मैं विभाग को विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बस आभार भी कि ये एक अच्छी परंपरा है। माननीय कुलपति महोदया के आने के बाद हर ओकेजन को एक एकेडमिक सेशन में बदलने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई और हमारे कुलपति महोदय की सहमति प्राप्त हुई, उससे विश्वविद्यालय में एक नया आयाम जुड़ा है कि जब कभी कोई बाहर से हमारे पीएचडी वाइवा के लिए या किसी ओकेजन पे आते हैं तो उनका लेक्चर कराया जाए और विभाग अध्यक्ष के शिक्षक अगर सेवानिवृत्त हो रहे हो, ऐसे अवसर पर भी लेक्चर सीरीज का प्रारंभ हो। मैं समझता हूं कि ये ऐसी स्वस्थ परंपरा है जो विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर, फलक पर एक ऊंचाई प्रदान कर सकता है। तो मैं साहू साहब जो कि आज सेवा निवृत्त हो रहे हैं सरकारी तौर पर, शिक्षक गैर सरकारी तौर पर कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, तो मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आपका विभाग ने एक ऐसे विषय पर परिचर्चा रखा और उसमें राष्ट्र के एक ऐसे ख्याति प्राप्त शिक्षक को आमंत्रित किया। ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। मैं प्रोफेसर शाह साहब जब वो वाइस चांसलर थे सर शायद, तो मैं एक वाइवा लेने गया था, तो सर के चैम्बर में उस वक्त समीर कुमार वर्मा साहब आप ही के विषय के वहाँ शिक्षक होते थे। तो मैं जब वाइवा लेके उर्दू के वापस आ रहा था तो उस वक्त मेरे मित्र भी वहाँ डॉक्टर जमील अख्तर डीओ हुआ करते थे सर के समय में शायद, तो उन्होंने मिलाया था, वो परिचय वहाँ था और सर के बारे में इससे पूर्व में भी। और विद्या बाबू हमें बता रहे थे कि सर भी बॉटनी के हैं, ये तो हाँ ये भी बता रहे थे। तो बॉटनी के कई लोगों को देख के मुझे ये पता चल गया था कि सब लोग बॉटनी के हैं। तो ये अच्छी बात है। देखिए मेरी ये मान्यता रही है, मैं तो साहित्य का छात्र रहा और हूँ, लेकिन एक शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में, रजिस्ट्रार के रूप में मेरी ये सोच रही है कि शैक्षणिक संस्थान केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए नहीं है, हमें अन्य विषयों पर भी परिचर्चा करके छात्रों को जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो हमारा परिवेश है वो बहुत बदल गया है। हम ये बात तो कहते हैं कि हमने दुनिया को मुट्ठी में बंद कर लिया है, लेकिन जिस वक्त हमारे हाथ खुले हुए थे तो इस तरक्की पे हम बच्चों की तकदीर देख सकते थे।
उसकी तस्वीर देख सकते थे। आज कहीं भी समाज में चले जाइए, कहीं भी पे 10 आदमी आपको बैठा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घरों के अंदर बंद मोबाइल पे की दुनिया में गुम है। बल्कि घर के अंदर भी साहब अपना देख रहे हैं, मैडम साहब अलग देख रही हैं। ये हो गया। ऐसे स्थिति में छात्रों को बस एक जगह है जहां के 10-20 लोगों के साथ बैठ करके किसी चीज पर सुनने का और बात करने का मौका मिल सकता है, और वो है शैक्षणिक संस्थान। इसलिए उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। आपने जो विषय रखा है वो विषय भी बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं। भारत की इतनी लंबी यात्रा विकास की मैंने की है, हमने विश्व में अपने को स्थापित किया है, लेकिन आज भी गांव देहातों में किसानों को उनकी समस्याएं हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले गांव गया था, तो हमें एक बता रहे थे कि इस बार अगर बहुत ठंडक नहीं पड़ी तो लगता है कि वो जो सरसों और ये है वो नहीं हो पाएगा। वो वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हम और आप वैज्ञानिक तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। आज आवश्यकता यह है कि विश्वविद्यालय, जैसा कि विदेशों में है कि विश्वविद्यालय सिर्फ अपने परिधि में काम नहीं करता। मुझे भी कई देशों में जाने का अवसर मिला है, मेरे परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं। उन्हें कनाडा में जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए भी और उनके गाइड के लिए भी जिस विषय पे कर रहे हैं उस विषय के लिए आपको 3 महीना वहां जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एक संबंधी भेड़ जो होता है ना, भेड़ उसके जो बाल काटे जाते हैं उसके बाद ये होते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें 3 महीने कनाडा से लगभग 100 किलोमीटर दूर वो जो भेड़ियों का गांव है जहां, वहां रहने के लिए यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेनी पड़ी और वहां रहना पड़ा। हमारे यहाँ ये काम पूरे भारत में नहीं हो रहा है। इसीलिए हर बार साइंस कांग्रेस में महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो वहां जाते हैं वो चिंता व्यक्त करते हैं कि विगत 20 वर्षों में हमने कोई ऐसा आविष्कार नहीं किया है और साइंस के क्षेत्र में जो हम विश्व स्तर पर स्थापित कर सके। कारण यही है कि हम किताबों से रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे विषय पर आपने क्रॉप साउस की जो डिजीज हैं उस पर आपने रखा है, बायोटेक्नोलॉजी साइंस की सबका सब्जेक्ट रखा है, आपका वो सिस्टर सब्जेक्ट है बॉटनी का। तो मैं समझता हूँ कि रिसर्च स्कॉलर छात्र इससे लाभान्वित होंगे। और चूंकि ये आपके सम्मान में रखा गया है, साहू साहब के रिसर्च ओरिएंटेड टीचर रहे हैं। मैं भी लगभग 20 वर्षों से साहब आपको जानता हूँ, एक शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने काम किया, पदाधिकारी के रूप में। तो उनकी कमी खलेगी, बल्कि कई वो सिर्फ अपने विषय के नहीं थे, बल्कि मुझे लगता ही नहीं था कि वो बॉटनी पढ़ाते भी हैं। कंप्यूटर डिजिटल के विषय पर ज़्यादा हम लोगों को मार्गदर्शन देते थे। तो उनकी कमियां तो रहेगी। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय दे पाएंगे और विश्वविद्यालय परिवार से वो अलग नहीं रहेंगे। मैं समझता हूं कि उनका जो नेचर है, उनकी जो कार्य करने की शैली रही है और शोध के प्रति, विभाग के प्रति, अपने विषय के प्रति जो लगन रही है, उससे भविष्य में भी हमारे शोधकर्ताओं को, विभाग के बच्चों को जब आवश्यकता होगी उसका मार्गदर्शन करेंगे। आपने इस अवसर पे मुझे बुलाया, उसके लिए मैं विभाग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय कुलपति महोदय को सरकारी मीटिंग में अचानक जाना पड़ा। अभी 10 बजे उनकी मीटिंग थी। सुबह में उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैडम
प्रतिकुलपति महोदया तो जाएंगे ही, लेकिन आप जरूर जाइएगा कि 2 विभागों में आज शिक्षक के सेवानिवृत्त इस पे आयोजन हो रहा है। उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए मालूम जी, तो हमारे सेक्रेटरीट कुलपति महोदय के सेक्रेटरीट के आज भीम जी विचार कर रहे हैं। बल्कि आज सुबह सुबह जिस कॉलेज में के साहब थे, वहाँ के प्रिंसिपल बता रहे थे कि आज 8 नॉन टीचिंग स्टाफ आज रिटायर कर रहे हैं। एक कॉलेज से 8 नॉन टीचिंग स्टाफ का रिटायर होना, इसी से अंदाजा लग सकता है कि आज विद्यालय में कितने विजन बता रहे थे कि आज 8 कर्मचारी हमारे रिटायर हो जाएंगे, हम कॉलेज कैसे चलाएंगे। मैंने कहा कल से देखा जाएगा। तो ये स्थिति है रिटायर होने की, तो लेकिन विभाग ने ये परंपरा किया है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से और माननीय कुलपति महोदय की ओर से बिहार के विशिष्ट मुख्य अतिथि प्रोफेसर शाह साहब का स्वागत भी करता हूँ और आभार भी करता हूँ कि आप इस समय में, ठंड के समय में विश्वविद्यालय को ये अवसर दिया कि हमारे छात्र शिक्षक हम लोग आप के लेक्चर से लाभान्वित होंगे। और डीन साहब की भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि वो विश्वविद्यालय कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके रिटायरमेंट होने के बाद विश्वविद्यालय को बड़ी कमियां होंगी, महसूस होंगी, कि जिनका उपयोग एक अभिभावक के तौर पे मैं करता रहा हूँ। ऐसे लोग जा रहे हैं, तो हमें अपने उन शिक्षक भाइयों से भी अनुरोध है कि चाहे वो B.A. झा साहब जो भी 1 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे, ठीक 28 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे, साहब रिटायर हो रहे हैं, तो हमें अपने शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ विश्वविद्यालय के कार्यों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय आपका है और आपकी पहचान विश्वविद्यालय से है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, मुआफ़िज़ डॉक्टर मिथिला यूनिवर्सिटी। अभी अभी ये जानकारी हुई है और जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स का जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तहे दिल से उनका भी स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। And the lecture session showing the value of biotechnology in crop improvement and disease resistance. Yes, exactly. अगर हम अपने आज़ादी के दिन से आज तक को कंपेयर करें तो जैसे जैसे वक्त बीता पॉपुलेशन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती चली गई, but still we are thankful to the such subjects that still we are getting the food enough, and this is the role of biotechnology in fact. Now continuing the session, I request Professor B.S. Jha sir, Dean, Faculty of Science, very intellectual, very illustrative, to come to the dais and address the session. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय विदुषी प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, मंचासीन वित्तीय सलाहकार श्री कैलाश राम जी, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी, ऊर्जावान, डैशिंग, डायनामिक कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब, आज के लेक्चर सीरीज के रिसोर्स पर्सन, संसाधन पुरुष प्रोफेसर नंद किशोर शाह जी, भूतपूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, सभागार में बैठे हुए मेरे मित्रगण हीरा बाबू, अनुज, विद्या बाबू,
अशोक बाबू, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर विजय बाबू, सुरेश पासवान जी पेंशन ऑफिसर, मेरे अनुज रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के झा साहब, अंसारी जी, और वैसे सभी लोग, परीक्षा नियंत्रक और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबों को मेरा सादर नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए तो बहुत सुखद है और किसी भी रिटायर्ड पर्सन के लिए काफ़ी सुखद होना चाहिए। मैं सोच के आया था कि साइंस में क्लास में भी अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाने की आदत है, लेकिन कुल सचिव महोदय के अभिभाषण के बाद मैं भी उत्प्रेरित हो गया कि मैं भी हिंदी में ही बोलूं आज। और हाइब्रिड मोड में ये हो रहा है, यूट्यूब से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि हाइब्रिड मोड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं अपने विचार को रखूं। मैं दो बात आपको कह सकता हूं अपने सारे कलीग्स को। ये जो हमारे कुलपति महोदय आए हैं, जब से प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सदैव तक प्रयत्नशील रहते हैं। कल भी हमारी बात हम लोगों की हुई है उनसे, तो उनकी विभिन्न योजनाएं हैं, कैसे प्रोफेशनल कोर्स वगैरह स्टार्ट किया जाए, उस पर भी कुछ डायरेक्शंस मिला है। मुझको लगता है कि ये जो टीम है ट्रायो का, हमारे माननीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदया और ऊर्जावान काफ़ी डायनामिक कुल सचिव, इनके टीम में विश्वविद्यालय काफ़ी आगे बढ़ेगा। और हम लोग तो यहाँ हैं, रिटायर करने के बाद भी शिक्षक कभी रिटायर नहीं करता है, कभी रिटायर नहीं करता है। और मैं टॉपिक पर आज अपने को, हालांकि मेरा विषय है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मैं आदमी हूँ, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स टुगेदर और मुझे अच्छा लगता, लेकिन रिसोर्स पर्सन काफ़ी विद्वान हैं। इनके और आपके बीच में मैं नहीं आऊँगा, उस पर मैं थोड़ी बात रखूँगा, लेकिन मैं अपने आप को आज कंसंट्रेट करूँगा आज के जो दुल्हा हैं कृष्ण कुमार शाह जी, उनके ऊपर। तो आज का पहले तो जो थीम है, ग्लिम्पसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट। एक बायोलॉजी के छात्र के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा जो सेल है, प्लांट हो या एनिमल, सेल जो है, टिश्यूज जो है, ऑर्गेनेल्स जो है, उसको जो हमारा बायोकेमिकल पाथवे है वो फैक्ट्री के रूप में यूज करता है। और उस फैक्ट्री के तहत बहुत सारे प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, जिस प्रोडक्ट्स को हम केमिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत कुछ कह सकते हैं। इसी फैक्ट्री के जरिए बहुत सारा काम होता है और बायोटेक्नोलॉजी भी इसी फैक्ट्री का एक अंग है। तो बायोटेक्नोलॉजी में खास करके बड़ा अच्छा है क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट। मैं तो बॉटनी का आदमी नहीं हूँ, एनिमल साइंस की बात होती तो कुछ मैं ज़्यादा इस पर प्रकाश डाल सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कम से कम 2-3 चीज संसाधन पुरुष आपको बहुत अच्छा लेक्चर देंगे, मुझे पूरा मैं भी सीखूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, चश्मा के बिना कुछ बने हुए थे, ठीक है, सॉरी। तो होता क्या है कि बतावेंगे संसाधन पुरुष, अगर मैं सही गलत हूँ तो थोड़ा सा कहेंगे मुझे। ये जो खास करके हमारे इस विषय में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है, इसका एनालिसिस और मैनिपुलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये खास करके बायोटेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी अहम रोल हो गया है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के आर यूजफुल वो डिजीज डायग्नोसिस में, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पैथोजेंस में, होस्ट पैरासाइट रिलेशंस को एक्सप्लोर करने में बायोटेक्नोलॉजी का और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का खास करके बहुत ये है योगदान है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिसर्च वर्कर्स क्या करते हैं, हम आप सब जानते हैं कि किसी खास सिलेक्टेड जीन्स को हम
डिजीज रेसिस्टेंस जीन को ट्रांसफर कर देते हैं अदर स्पेसीज में, तो क्रॉप जो होता है सो डिजीज रेसिस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये बड़ा ही प्रासंगिक विषय है, बहुत ही प्रासंगिक विषय है। इसके लिए वनस्पति विज्ञान विभाग के प्लांट पैथोलॉजी के भी आदमी बैठे हुए हैं। हम लोगों से शायद 1 साल या 2 साल जूनियर थे विद्या बाबू, प्लांट पैथोलॉजी के आदमी हैं। तो ये इनका भी विषय ही है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी अहम है। इससे हम क्रॉप मैनेजमेंट को, खास करके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। डिजीज, पैरासाइट्स सबको चेक कर सकते हैं। इवन ड्रॉट टॉलरेंस टेक्निक स्पेसीज भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ये होता है, इसलिए काफ़ी अहम है। तो वनस्पति विज्ञान के सभी शिक्षकगण इस ऐसे टॉपिक को चुनने के लिए बधाई के पात्र हैं। अब मैं आता हूं, आज के फोकस कर रहा हूं अपने मित्र कृष्ण कुमार साहू जी के बारे में। मैं आपको बताऊं, मैडम थोड़ा डिफर कर सकती है, पटना यूनिवर्सिटी से इनको ज़्यादा मैडम को लगाव है, लेकिन मिथिला तो इनकी जन्मभूमि भी है और अभी तो कर्मभूमि भी है। मैडम को यह रियलाइज, मैंने अप्रिसिएट करना होगा कि जब कोरोना का प्रारंभिक काल आया था तो ऑनलाइन क्लासेस जितना इस विश्वविद्यालय में हुआ उतना पटना विश्वविद्यालय में भी नहीं हुआ। मेरे पास रिकॉर्ड है ये गवर्नर हाउस का, और इनके पास भी है, क्योंकि ये उसको लोड करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने के बाद अपने बच्चों को कुछ मटेरियल अपलोड कर दिया। तो उस दिन के साहू के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई, रिस्पेक्ट का भावना और ज़्यादा बढ़ गया कि इन्होंने मुझे कहा कि मैंने किसी चीज़ पर कहा कि साहब आप जरा PDF बना दीजिएगा, हम भेज रहे हैं कुछ। इन्होंने कहा सर अभी आप ही का आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ, काई स्क्वायर टेस्ट। सर बहुत अच्छा है, सर इसमें हम एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं, जरा इसको समझा दीजिए। ये कहने का किसी सीनियर टीचर अगर ऐसा कहे कि इसमें कोई ये चीज़ सर हम नहीं समझे, इसको जरा समझा दीजिए, मेरा इतना रिस्पेक्ट बढ़ गया इस आदमी के प्रति कि भाई इस आदमी को सीखने की ललक है। और वह आदमी वही अच्छा टीचर, वही अच्छा रिसर्च वर्कर, वही अच्छा विद्यार्थी हो सकता हो जो इस मायने में बेशर्म हो। कोई भी चीज़ अगर उसको नहीं आता हो तो उसको एडमिट करने में किसी में अगर ये कोई बाधा नहीं हो तो वह आदमी आगे बढ़ता है। तो मैंने कहा कि ये आदमी मुझसे और वो कुछ नहीं, एप्लीकेशंस हम लोग, और हाँ एक और चीज़ था, ये एप्लीकेशन जो हम लोग जेनेटिक क्रॉसेस में उसका करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या मेंडेलियन रेशियोज पर लागू होता है या कि नहीं, कुछ यही सब चीज़ इन्होंने पूछा था। तो और इसके बाद इन्होंने कहा कि सर अब हमको बड़ा क्लियर हो गया। हमने कहा कि आप पढ़ते भी हैं, तेरे आप लोगों का नोट जो आता है उसको अभी कुछ देख रहे हैं और मुझको भी बॉटनी में पढ़ाना है, तो सर अब तो हम और अच्छा से पढ़ा सकेंगे। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। तो इस आदमी और चीज़ तो गुण ही गुण है इस आदमी में, लेकिन ये जो एडमिशन था इनका, जिस रूप में इन्होंने कहा, तो उस दिन मेरा रेस्पेक्ट और बढ़ गया इस आदमी के प्रति कि सीखने की ललक, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छे विद्यार्थी का यह गुण है। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। और आज मैं एक जूलॉजी के छात्र के नाते, और परसों मेरी आदत है दिन में मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन किसी भी दिन मैं रात में 1 बजे से पहले बेड पे नहीं जाता हूँ, रात ही को मैं पढ़ता हूँ। कई दिन लोग टेस्ट भी किए हैं, 12-11 बजे रात में ये भी बात किए हैं। तो परसों संजोग से देखिए कितना सुखद है कि के साहू जी का आज उसको मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ। परसों मैंने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक लेख था, जॉर्ज वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर और प्रोफेसर मुनिच उरी, मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी, उनका मैं एक रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर पढ़ रहा था। परसों रात की बात है। वो इतना अच्छा पेपर है कि आज हम सबों को, इसीलिए मैं हिंदी में संबोधित कर रहा हूँ कि हो सकता है कोई जीव विज्ञान के आदमी नहीं हो, आर्ट्स साइंस के भी हो, तो वो इसको समझ पाएंगे और उनको अच्छा लगेगा। तो उसमें यह दिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि के साहू आज से सबसे अधिक युवा है। उसको मैं कैसे साइंटिफिकली रिसर्च से कोरिलेट कर रहा हूँ, इसको आप देखिए। और अब मुझे यह पता चला कि मेरे कुलपति
मेरी प्रतिकुलपति, ये लोग क्यों अभी भी ब्रेन से इतना एक्टिव है। कुछ तो जूलॉजी के स्टूडेंट के नाते जानता था, लेकिन ये एक इतना अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन है, उसको मैं कुछ चीज कोट भी उसका करूंगा। तो कहता है क्या कि 60 से ऊपर जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, सो दैट ब्रेन ऑफ ओल्डर पर्सन्स एबव एज 60 वो मोर प्रैक्टिकल हो जाता है। वह ब्रेन क्यों हो जाता है? तो देखिए, जब तक 60 वर्ष से नीचे रहता है, ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, व्हाट वी कॉल एज राइट लोब, लेफ्ट लोब। तो 60 साल से पहले ब्रेन का एक ही हेमिस्फीयर एट ए टाइम आपसे काम ले सकते हैं आप। बट व्हेन द एज एडवांसेस आफ्टर ईयर 60 इयर्स, तो ब्रेन का दोनों लोब हेमिस्फीयर जो है साइमल्टेनियसली वो काम करने लगता है, तो ब्रेन यंग हो जाता है। आप यंग हो रहे हैं, तो ब्रेन यंग हो जाता है, और उससे क्या होता है, दोनों लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर के इंटरैक्शन के चलते ब्रेन बिकम्स मोर हार्मोनियस, व्हिच क्रिएट्स क्रिएटिविटी। अब मैं आ रहा हूं कि लोगों को क्यों होता है पार्किंसंस या वो भूलने वाली बीमारी, जो सब भी होता है, क्यों होता है, नहीं होना चाहिए और नहीं होगा जो इस चीज को फॉलो करें। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये बात सत्य है कि यूथ ब्रेन इज नॉट एज फास्ट एज इन यूथ, वो फास्ट नहीं रहता है उतना, बट इट गेन्स फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों हेमिस्फीयर के काम का एट ए टाइम काम करने के चलते इट गेन्स फ्लेक्सिबिलिटी। Therefore, aged persons are more likely to make right decisions. इसीलिए तो उनसे राइट डिसीजन की अपेक्षा की जाती है, और राइट डिसीजन वो लेते हैं, निगेटिव इमोशंस नहीं आता है। मैं वो पेपर भी आज डाउनलोड करके ले आया हूँ, जिन किसी को भी जरूरत हो। इसके बाद क्या होता है ह्यूमन का, अब हम आते हैं मैडम पर और अपने कुलपति महोदय पर, कैलाश राम जी पर, कि 70 के पास एबव जब लोग का एज हो जाता है, तो दिस इज द पीक ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये रिसर्च से साबित हुआ है, मैं लाया हूं पेपर। सो दिस इज द पीक ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी दैट अकर्स अराउंड द एज ऑफ 70 व्हेन द ब्रेन बिगिंस टू फंक्शन एट फुल स्ट्रेंथ। ब्रेन फुल स्ट्रेंथ में फंक्शन करता है 70 और उसके ऊपर के एज में। कोई आदमी जो अपने को बूढ़ा समझता है, हम आप ज्यादा नौजवान हैं, आज जो ज्वाइन किया है उससे ज्यादा नौजवान, एकदम नौजवान रहिए, स्फूर्तिवान रहिए के साहू जी। और क्या होता है, मैं एक वैज्ञानिक बात अब बताता हूँ जूलॉजी के छात्र के नाते। होता क्या है, जब 65 साल से लोग ऊपर होते हैं, आप तो 65 हो गए, ये अब आपके लिए और लागू होता है और हम सबों के लिए, तो एक नर्व में माइलिन होता है सब्सटेंस, सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते होंगे। तो वो ओवर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एज एडवांसेस, तो माइलिन जो सब्सटेंस जो है ब्रेन में, या इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। सो माइलिन इंक्रीजेस एज द एज एडवांसेस। और इसके बाद क्या होता है, यह माइलिन एक ऐसा सब्सटेंस है दैट मेक्स रैपिड पैसेज ऑफ सिग्नल्स तो बिटवीन न्यूरॉन्स। तो ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, तो न्यूरॉन्स से कनेक्टेड रहता है नर्व सेल्स। तो अगर उसमें रैपिड पैसेज हो जाए, तो सिग्नल हो जाए, तो ज्यादा सिग्नल जो भी कोई चीज है तो वो ज्यादा रैपिडली फ्लो करने लगे, तो आप किसी युवा से ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिव है कि नहीं है। तो क्यों रिटायर्ड आदमी सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए? कभी नहीं बूढ़े हैं आप, कभी नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तीसरी बात यह कह रहे हैं कि एक क्रॉस किया गया, स्टडी किया गया, तो देखा क्या कि इस तरह से माइलिन के इंक्रीज, ब्रेन में माइलिन जब बढ़ जाता है तो एवरेज आदमी के तुलना में 300% इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ जाती है। आप कनाडा का लीजिए, अमेरिका का लीजिए, इंग्लैंड का हिस्ट्री लीजिए, 90 साल 95 साल के लोग प्रोफेसर हैं, तो दे आर मोर इंटेलेक्चुअल, उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं कि बीमार हो, रिटायर कर गए, आप तीर्थ यात्रा करे। अरे रिटायर करने के बाद आपको मोर क्रिएटिव होना है, यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर सब्जेक्ट, लिखिए किताब को, पढ़िए जर्नल्स को, इसीलिए आप एकदम युवा हैं, मैं बार बार आप ही को कह रहा हूँ। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें आया है कि आफ्टर 60 years
ए पर्सन जो कहे हैं, जो एक दोनों हेमिस्फीयर, ब्रेन के हेमिस्फीयर को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, उसके चलते क्या होता है कि वन बिकम्स एबल टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो कुलपति, प्रतिकुलपति या अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स का जो एज 70 साल तक गवर्नमेंट कर दिया है, सही किया है। इसलिए किया है कि वो उसको डिसीजन मेकिंग जो है उसका, वो दोनों हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और इसी क्रम में मैं आपको कहता हूं और सारे लोगों को कहता हूं कि बुढ़ापा नहीं होता है, आपसे अधिक बूढ़े लोगों का ब्रेन एक्टिव होता है। मैं कुछ पंक्तियां कोट करता हूं उस रिसर्च जर्नल का, जिससे कि ये सबों के लिए फायदामंद है। देखिए, ये है डायरेक्टर ऑफ द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। इनका ये सब तो जो कह दिए हैं, थोड़ी सी बात, अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। प्रोफेसर मोंची उरी, ये मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टडी किया ओल्ड ब्रेन, मैंस के ब्रेन पर और यंग मैन के ब्रेन पर। और इसके बाद, और वो स्टडी जो है कोई एक ब्रेन पर नहीं है, कम से कम ये 2840 ह्यूमन ब्रेन्स ओल्ड और इतना ही यंग, इस ब्रेन का इन्होंने स्टडी किया। अब उन्होंने कहा है अंत में कि लेट अस लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 60 एंड 80, दे आर रियली पिंक। अब देखिए एल्डरली पर्सन का ब्रेन कैसा होता है, सबको जानना चाहिए। कहता है कि हम लोग कहते हैं क्या कि भूलने की बीमारी आ गई है, वो गलत है साइंटिफिकली। भूलते हैं लोग इसलिए कि लोग निठल्ले हो जाते हैं, कार्य नहीं करते हैं। कहता है क्या कि हम लोग भी जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले यह कहते हैं कि न्यूरॉन्स इन द ब्रेन वो डाई, मर जाता है। मरता नहीं है वो, न्यूरॉन्स नेवर डाई, एज एवरी, लिखे हैं, एज एवरीवन अराउंड अस सेज, द कनेक्शंस बिटवीन देम सिंपली डिसअपीयर इफ वन गेट्स इंगेज, इफ वन डज नॉट गेट इंगेज इन मेंटल वर्क। अगर आप सीनियर हो गए, 65 साल 60 साल से ऊपर हो गए और मेंटल वर्क नहीं कीजिएगा, तो आपका जो न्यूरॉन्स का कनेक्शंस है, इंटरकनेक्शंस है, वो डिसअपीयर करने लगता है। इट इज नॉट दैट द न्यूरॉन्स डाई, नर्व सेल्स डिजनरेट करने के बाद रिजनरेट नहीं करते हैं। तो अगर वो डिजनरेट पूरा कर जाएगा तो कैसे काम करेगा, इसलिए वो मरता नहीं है। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन, कहता है कि ओल्ड एज में डिस्ट्रैक्शन एंड फॉरगेटफुलनेस, भूल जाने की बीमारी जो हो जाती है, ड्यू टू एन ओवर एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कंसंट्रेट योर होल लाइफ ऑन अननेसेसरी ट्रिपल्स। अब इस सबको भूलिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। फ्रॉम द एज ऑफ 60 ए पर्सन व्हेन मेकिंग डिसीजंस डज नॉट यूज वन हेमिस्फीयर, वो कहे हैं। तो ओल्डर पर्सन का ब्रेन में दोनों हेमिस्फीयर काम कर रहा है। और कंक्लूजन में वह कह रहे हैं कि इफ ए पर्सन लीड्स ए हेल्दी लाइफस्टाइल, मूव्स, वॉक्स, हैव वायबल फिजिकल एक्टिविटी एंड इज फुल्ली मेंटली एक्टिव, मेंटली एक्टिव ज्यादा रहना है, पढ़ना लिखना नहीं छोड़ना है, एबिलिटीज, intellectual abilities then do not decrease, rather they simply grow, reaching the peak at the age of 80 to 90 years. This is the finding. So do not be afraid of old age. Do not be afraid, Mr. Keto Sahu, of your superannuation. Strive to develop intellectually, learn new crafts, make music, learn to play musical instruments, paint the pictures, and even dance. You can dance. Take an interest in life, meet and communicate with your friends, plan for the future, travel as best as you can. और इसी के साथ मैं आपके स्वस्थ, सुखद और उज्जवल, अब जो आपका युवावस्था आएगा, उसकी शुभकामना करता हूं। मुझे वक्त देने के लिए एक बार पुनः सबों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नहीं है, मीटिंग में चले गए हैं। अब यहाँ पे तो मैडम को फ्री होंगी, आधा घंटा लगेगा। Very well said, sir. 15-20 मिनट की मैडम का एड्रेस करवा दीजिएगा। What an energetic address, sir. ठीक है।
by our Dean B.S. Jha sir. इस डिलीवरी को सुन करके सभी में उत्साहना और उत्तेजना जाग उठी है. And in that regard, I also request Sahu sir कि academically and on paper you are going to see your firm here, but as he said that brain with due course of time become younger and younger, तो हम भी उस youngness को use करना चाहेंगे in future. And as he said that the only thing rest is the pace. So we try to move up to the pace on your guideline, on your guidance and your guardianship. In continuing the session, now I request one of the most prominent person of this event, our resource person, Professor Nankishore Saha sir, to come to the dais, who has published more than 45 renowned papers peer-reviewed. Professor Nankishore Saha sir. Till the presentation for the Saha sir is going to be ready, another thing comes to mind, what has been delivered by our Dean B.S. Jha sir about the monoclonal antibodies, which has been developed by Kohler and Milstein in 1975. So it was a revolutionary period at that moment. So many diseases comes to end with such type of evolution. हम सब जवान नहीं. So I again welcome Professor Saha sir to have the presentation. Please, sir. ठीक से उठा दो वायर से. ये नीचे लगेगा देखो. हाँ. At the outset, I would like to pay my hearty gratitude, honor and respect to my alma mater, LMU. This is the place where I graduated from with a very wonderful show. In the mentorship of excellent teachers, I can say now, of the world. Professor Jaishankar Prasad, Professor A.K. Mishra, Professor N.K. Jha, Professor Verma. They were perhaps one of the best teachers LMU has got. Perhaps they are still there, and my deep-hearted respect to all of them. Professor Dolly Sinha, the Honorable Pro-Vice Chancellor of LMU. We have been together on some common diets in Ara also. She is a wonderful speaker. I have heard her speaking a couple of times. And many thanks to
to Professor Sahna Jameel, who made this event possible. She is a wonderful human being, wonderful researcher, and also a great organizer. Braving this cold weather, she has been able to manage this. This is a great feat, no doubt about it. So I'm very thankful to her. My friend Professor Satyana Jha, we always make pretexts to see each other in the Bhanga or elsewhere. He is also here. Thank you very much, Professor Jha. The registrar, Dr. Mustaq Ahmad, he is a very entertaining speaker. Thank you, sir. Professor V.S. Jha, the Dean, Faculty of Science, excellent speaker, spoke very nicely about what modern biotechnology and modern science is about. Professor R.N. Jha Sahab, Dr. Gajendra Prasad Sahab, and all the luminaries and scholars sitting in this hall. And not the least, Dr. Khalid Anwar, anchor, is a wonderful presenter of programs. Thank you all very much. With these few words, I would like to give you some glimpses of biotechnology in the control and management of crop disease. As you know, today's world is populated by about 7.2 billion people all over the world, and that is supposed to grow to about 8.1 billion by 2025, and it is going to cross 9.7 billion by 2050. So population has been growing at a rate of about 1.2%. Similarly, our food production must go up. In 1970s and 80s, our ancestors, scientists and professors, they did a wonderful job by bringing the first green revolution in India that was pioneered by Professor M.S. Swaminathan. Before 1970s, we all remember, wheat used to come from America under an agreement PL 480. And the terms and conditions were very derogatory. Madam Mrs. Gandhi read those terms and conditions and she said, हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन इन terms और conditions पर हम गेहूं नहीं लेंगे. She came back energized, mentally prepared, made Professor M. Swaminathan the charge of Green Revolution pioneer, and at the time one more great personality, Dr. Norman Borlaug, was doing great things in the world about wheat production. So with his help, Dr. Swaminathan brought in Green Revolution in India, and India became self-sufficient in food production. Eventually, Dr. Norman Borlaug got the coveted Nobel Prize for his seminal work. So the objective of the first Green Revolution was to improve the quality of seeds, new varieties of crops to be produced, use of chemical fertilizers,
disease control measures used to be insecticides, fungicides and pesticides, improved farm implements and proper irrigation. These were the tools that were used to usher in first green revolution. But then this green revolution actually brought in some bad things also. We'll discuss about that. The benefits of the first green revolution was production of cereals increased significantly. India became self-reliant in food production. Not only that, it also enabled our country to be able to export the extra additional food grain that we produced. And now we have heard that our country is able to produce more than 3 million tons of food grain this year. That is marvelous. And during the first green revolution, the maximum was about 235 million tons. We have exceeded much more that thanks to the contribution by biotechnological tools and techniques. But this green revolution brought in some scary things also for us. For example, our soil fertility went down, cattle health was compromised, human health was also affected, avian health, microbiota was affected, environment was also polluted to a large extent, and more importantly, many of these maneuvers led to loss and change of flavor and taste of many things that we used to enjoy. This loss of flavor, as you know, earlier when cauliflower used to be cooked in a house, the whole tola used to be, full of aroma of cauliflower, but now it doesn't happen. What went wrong? One of our biotech graduate students at Gwalior tried to analyze this, and he came with very startling results. Now I have seen in the internet, I found that there are so many things in cauliflower which used to bring taste to cauliflower that has been lost or reduced to much level. And the bad things that we often try to avoid, that is now becomes prevalent, so it becomes a little bit big. So this is the thing that we have got from first revolution. How do we overcome these needs to be solved. Intervention of biotechnology in the crop management, how do we do it and why do we do it? Why is it essential? It will definitely lead to increase in production. Number two, it will reduce the use of chemical fertilizers. It will minimize the use of insecticides and pesticides. Climate resilient crop plants will be raised, as Dr. Jha mentioned, with the use of resistance genes. We can also grow plants on water bodies. We have got that technique. It is now being perfected. There will be reduced to threat if we use biotechnological tools and techniques. There will be minimal harm to the ecosystem and ecological balance. What are the intervention points that we can do through biotechnology? These are some of the glimpses that I want to show before I delve deep into how we are going to achieve through biotechnology. Number one, BT gene, you must have heard about it. BT cotton, BT brinjal. We'll talk about this. Flavor saver tomato is a second important plant
that we have harnessed. There are several cereal plants such as wheat, rice and maize. Their genes have been modified to a good extent so that they give us more food grain. This is about BT cotton on right panel. Yours is also right. You can see the cotton on the right side, there is hardly any cotton in this. And on the left panel you can see the cotton is being grown in good amount. How did it happen? There is a gene called BT gene. It is found in Bacillus thuringiensis. This is toxin gene. Whenever some animal tries to take over this bacteria, it produces toxins and inactivates that organism, or tries to evade that organism with the help of its toxins. The same gene has been put into cotton plant, and now our cotton farmers are very happy because they are raising more money and doing good business with this cotton. This is BT brinjal. Earlier we used to enjoy a good taste, but now we have compromised. But the quality of brinjal that we get, that's marvelous. This is what used to happen without that gene. And when this gene was introduced into it, this is the quality of the brinjal that we get. So how was it brought into this brinjal plant and this cotton plant? This gene, BT gene, was cloned. It was smarted into Agrobacterium tumefaciens, which is also a bacterium. It was discovered in 1907. At the time it was discovered as a crown gall tumor bacterium. Wherever it used to grow, it used to make a tumor type on leaf and stems of those plants. In those days we didn't know that it is going to be a genetic engineer. Now we know that this bacteria is a very good natural genetic engineer. But then there are protests about this BT brinjal, and in many crops this gene has been introduced. People say that the whole cassette of BT gene and this whole cassette has been put into these plants. This gene is doing a good job. But what are the other genes which weren't associated with this gene are doing there? These are the questions that are being raised today. And now common people ask, if this gene can kill small organisms like worms, why can't it, or damage human beings, cattle, who feed upon these brinjals and other plants that we enjoy? This is another glaring example of the use of tomato. This is called flavor simmer tomato. There is a smart technique in this. There is no BT gene here. A scientist in California in 1992 perhaps thought that this tomato, when ripe, it can live for about 2-3 days, not more than that. And immediately it starts rotting and getting decayed. He thought that if the outer rind of tomato remains intact for a longer time, perhaps it will stay in good condition for a long time. So what he did, the outer layer, which is made up of pectin. Pectin is a substance of plant cells. After the cellulose layer, there is pectin layer. It is the pectin which makes its skin harden. So as soon as the normal tomato starts ripening,
this pectin is dissolved by a gene called polygalactorunase. It dissolves pectin, and immediately this tomato becomes pulpy. It starts, when you touch, it becomes too soft. When we shut off this gene, then pectin will not be dissolved for a long time, and it will stay for a longer time. This has been done by not BTG, but an antisense RNA. What is RNA? Antisense RNA. We know that whenever a protein is produced, first an mRNA is generated, that is called transcription. And this mRNA is translated to be converted into a protein molecule. A scientist thought, if this mRNA is blocked from translation, if it is stopped from translation, this protein will not be produced, and our tomato will stay healthier and harder for a longer time. That's what happened. A gene which is antisense, that means that is the complementary of that mRNA, has been produced and introduced into tomato. As soon as the mRNA of polygalactorunase is produced, at the same time that gene also is produced. So it binds with the mRNA of polygalactorunase and blocks its translation. That's very, very smart thinking. And the result is in front of you. In 10 days, most of the tomatoes look fine. After 20 days, you can see this is without that antisense, and these are with antisense. After 45 days also, you can see how it is dissolving and getting destroyed. But with this antisense, it is staying longer and longer. In the market today, when we see tomato, most of them are with this flavored tomato. With these some glaring examples, let me tell you how plant biotechnology works. It works on three basic principles. One is genetic engineering, or the recombinant DNA technology. Number two, tissue culture. And third is transgenics. By genetic engineering, we identify those particular genes, we clone it, and then try to put it into a plant cell of our choice, of our favor, through tissue culture. And then when the plant takes up this gene, it is grown into a full plant through transgenics. How do we do it? The best way, as we just discussed, there is a natural genetic engineer of plants which is called Agrobacterium tumefaciens. Its normal activity is to produce a gall, a tumor gall. This is a kind of tumor, plant tumor. And this is the bacteria that you can see on the right panel. This is a normal thing that this bacterium does. Now, Agrobacterium species is of three major types. One is Agrobacterium tumefaciens. Second is Agrobacterium rhizogenes. This infects roots. The previous one infects the upper part or the aerial part of the plants. And third is Agrobacterium radiobacter. It is non-virulent and it is called Agrobacterium radiobacter or Rhizobium agrobacter. There are some salient features of this Agrobacterium. This is a gram-negative rod-shaped soil bacteria. It produces crown gall disease normally. This pathogen has now proven to be a natural genetic engineer, possesses an ability to transfer genes that transform plant cells. It hosts a unique plasmid TI DNA that carries tDNA with ability to integrate foreign DNA into the plant cell genome. Discovery of
of PI plasmid was indeed a great discovery in 1974 by Jinan of the University of Ghent. He termed it as a TI megaplasmid. What is a plasmid? Plasmid is actually a small molecular naked DNA found in certain bacterial cells. Normally, it is of the size of about 2.5 kb to 30 kb. It is normal size range, but this is a mega size. It is about 200 kb, and this hosts about 150 genes or open reading frames. The important component of this is tDNA. T means transfer or transformation DNA. This is the only gene where our gene of interest is integrated into. Now, when this plasmid is taken up by Agrobacterium and when it is infected to the plant cell, it carries the whole cassette of tDNA and integrates into the specific positions of host plant cells. And that's how it works. There is excellent molecular biology and genetic engineering of how it actually does. Perhaps I don't have much time to discuss all those things. This is the structure of TI plasmid. And you can see on the upper region, this is the place, cytokinin, opine, auxin. These are plant hormones. Whenever this gene is integrated, automatically that plant cell is convinced to grow normally. We do not have to add anything additional to it. That is the beauty about it. And the cytokinin position is cleaved and the desired gene is put into it anywhere it will accept. These are the two borders. Now, this looks to be a bit busy slide. Just to explain it a little more clearly, upper one is the host cell where the gene has to be transferred. Lower one is the bacterial cell, and from that plasmid we have already put the gene into it, and it is infected through the cellulose cell wall and pectin cell wall. It goes there, and this DNA opens the DNA of the host plant cell and puts its own DNA and gets it sealed again. That's how the genome is changed. This is not the only way to put a foreign gene into plant cell. There are alternate methods also, but these alternate methods are more of scholarly type than for practical stance. Agrobacterium mediated transfer is most reliable, but then scientists have shown that by bialistic methods, by hybridization, by chemical methods using PEG, electroporation, by microinjection, and through silicon carbide, we can transfer genes. But then those genes are very labile. You won't know whether it will get integrated into the plant genome or not very nicely. This is the T border, how this tDNA looks like. Now, coming to the real question of how biotechnology works to put foreign DNA into it. There are three methods. One is antisense, as we just discussed. Number two is RNAi, that is RNA interference. This RNA interference is of two types. One is siRNA, and that is a small interference RNA. This small interference RNA is very smart. As soon as this mRNA is formed, this double-stranded small RNA molecules binds to it and stops its translation. And that's how the protein is not produced, and our goal of blocking that particular gene is achieved. The second one is miRNA, that is microRNA.
this is put into the untranslated regions of mRNA, and through this its translational process is brought. And that's how the goal of biotechnology is achieved. Another one is RENSEQ method. This method has been imbibed from comparative genomics. There are well-known resistance genes, as Dr. Jha sometimes you mentioned very nicely about it. This gene, if it is multiplied in number in a crop plant, its resistance power will increase tremendously. So through RENSEQ, we can multiply those resistance genes and make it more resistant to anything that we feel like. CRISPR-Cas is another important tool that the biotechnologists and RDT people have discovered. This is a magic tool, let me tell you. It was discovered in 2011. And in 2020, both scientists got Nobel Prize. These two are ladies who got Nobel Prize for discovering CRISPR-Cas system. What is CRISPR-Cas? It is the clustered, regularly interspaced, short palindromic sequence. Now we are able to put any gene, modify any gene with 100% precision. Earlier, making some difference in a gene, manipulating a gene used to take 10 years or maybe 20 years. Even then, one used to be very sure that it will really recur. After a few generations, it may go out. But this is going to stay for a longer time. This is very important. What is CRISPR-Cas? This is a very simplified view of CRISPR-Cas. You can see this is G, that is guide RNA, and this is Cas9. Cas9 is an enzyme which cuts DNA. And guide RNA takes CRISPR-Cas9 to the relevant position. It will go there, stay there, and will allow Cas9, that is caspase-9, to cut the DNA. To make it more precise, the scientists have been able to put another gene as PAM, that is protospacer adjacent motif. It helps recognize the real site where cut has to be made. What is the cut? That is the phosphodiester bond has to be cleaved. After cleaning it on upside and down on both sides, the DNA opens. In between, we can put our desired DNA, seal it, and that is the modification. This is a 100% sure method, and now some people have tried in China also to modify in this way the human genome that has been protested very hotly by the people. This is how this system works. First we design the gene, put into our plasmid, then we take it to agrobacterium, because this is the best way to transfer foreign DNA into any plant cell. With this, the agrobacterium takes it to plant genome, and when actually it comes, by tissue culture, we can raise new plants. There is a pretty long list of plants that have been modified using biotechnological techniques. I haven't been able to put so many. Agrobacterium tumefaciens selectively uses dicotyledonous plants, but now the scientists have been able to do the same thing in monocots also. That's very marvelous. Monocots are not the favorites of agrobacterium, but now we can do it very easily. There is a pretty long list of, if you want you can take it. I won't take much time reading out all this. I just wanted to show you that many plants have been modified
using biotechnological tools and techniques, and we are doing great by raising our food production. This year, as I told you, the production has gone beyond 3 million tons. That is marvelous. Now a question has come out this year in Nature Plants. An article came which says that modifying gene using CRISPR-Cas technique is not genetic modification. It's not called genetic modification. Rather, it's just a normal thing. So people used to earlier think genetically modified food. Now we do not have to call it genetically modified, because we are not dealing with any modification, but we just want to either add a gene or silence a gene into the plant cells. It is called improvement, crop improvement system. With this, I think I have given you some of the glimpses of what biotechnology has done for the crop plants. Thank you all very much for listening. Wonderful. If you have some questions, I'll take them. ऑनलाइन क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी का क्वेरी है क्या? कोई बात ऑनलाइन है क्या? पूछो जब पूछो, बोल दीजिए। उसको मिनिमाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन है तो नहीं सर 5 मिनट का स्पीच है बस इसी के बाद जस्ट इसी साहब वहाँ कोई क्वेरी? I have few questions, but I will ask you later. Okay, as you like. Definitely. Well explained. Very marvelous lecture. So many questions are coming in my mind, but taking regard the time, I will ask later on. Now I request Professor Kirashram sir to come to the standing dais and address his thoughts. हमारे आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे अतिथि एवं आरा यूनिवर्सिटी के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के भूतपूर्व कुलपति महोदय, हमारे डीन साइंस, जो हम लोगों का जीवन चक्र है, कहीं हम स्थापित होते हैं तो कहीं से हटना भी पड़ता है। ये जीवन की यात्रा बहुत बड़ी है। शिक्षक का कभी भी शिक्षा से जुड़ाव नहीं होता है। अभी शिक्षक अपने विश्वविद्यालय में अपने जैसे होनहार विद्यार्थियों को पैदा किए। अब रिटायर होने के बाद ये देखेंगे कि जो कुछ मैंने सिखाया उसमें इन्होंने कुछ विकास किया, कुछ खोज किया, या उतने पे ही अटके रहे। हमारे डीन साइंस ने जो अमेरिका का रिसर्च पेपर बताया पढ़ करके, उससे ये लगा कि जब हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में है तो 60 वर्ष के पहले क्या हम लोग हाफ माइंड होते हैं?
चीज दूसरी चीज यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आगे बढ़ने की बात है। कोई भी पौधा को हम देखते हैं, जन्म लेता है, बढ़ता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, फल पकने का ये समय होता है तो पौधा नीचे से सूखता हुआ ऊपर की ओर जाके सूख जाता है। हमारा शरीर भी एक प्लांट की ही तरह से है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा फिजिकल प्रोग्रेस होता है। उस समय हम ज़्यादातर खेल कूद में कहते हैं, बच्चे को आप कुछ पढ़ाएंगे तो भी मन से पढ़ेगा, नहीं याद करेगा। धीरे धीरे एज बढ़ती है, वो नीचे से ऊपर की ओर डेवलप कर रहा है। धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है। फिर एक समय आता है कि वो सिर्फ मेंटल ही एक्टिविटी में रह जाता है और नीचे के सारे अंग उसके कमजोर हो जाते हैं। यही वृद्धावस्था का प्रतीक है। इसमें अगर आप देखें तो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, इसमें सबसे बड़ी हमारी क्रिया है श्वसन क्रिया। जब हम शारीरिक वर्क करते हैं तो हमारी सांसें लंबी चलती हैं, जल्दी जल्दी चलती हैं, शरीर हीटअप होता है। ज्यादातर दाहिनी नाक से ही सांस चलती है। दाहिनी नाक से जो सांस चलती है वो हमारे अंदर बाइल को उत्पन्न करती है, जिससे हमारे अंदर हीट भी पैदा होती है। उससे हमारे जो पिगमेंट हैं, कलर बनता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मेंटल वर्क की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे सांसों की लंबाई छोटी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गले तक की सांस आती है, फिर वो ऊपर निकल जाती है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। उस दशा में हमारे ब्रेन का लेफ्ट लोब जो है, या जिसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, वो एक्टिव होता है। हमारे ब्रेन के अंदर से वो सारे अलग अलग तरह के रसायन निकलते हैं जो हमारे मस्तिष्क को अच्छी तरह से डेवलप करते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर के डेवलपमेंट से कोई नाता नहीं होता है। तो जो ये आज खोज रहे हैं विदेशी लोग, हमारे लोगों ने तो बहुत पहले खोज रखा था। हम लोगों को पता इसलिए नहीं था कि हम साइंटिफिकली कुछ बता नहीं सकते। हमारे जो बाबा रामदेव, उन्होंने जो लंबा चौड़ा सांस लेने के लिए बताया, धौंकनी की तरह सांस लेने के लिए बताया, सब जुड़ा इसी से है। और हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों कैसे हेल्थ बैलेंस रह सके, इस पर कोई आज तक साफ नहीं बता पाया। क्योंकि हमें दोनों ही काम, फिजिकल और मेंटल वर्क दोनों ही हमें एक बराबर करना है। ओल्ड एज में अगर आप घूमते नहीं हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे अंग बेकार हो जाएंगे, सिर्फ ब्रेन रह जाएगा। इसलिए हमें दोनों को ठीक रखने के लिए हमें दोनों ही काम करना है। मस्तिष्क का भी वर्क करना है, फिजिकल का भी वर्क करना है। तो हमारे के साहू जी रिटायर होने के बाद मुझे उम्मीद है कि दोनों तरह के वर्क करेंगे, ये सुखी और दीर्घायु जीवन पाएंगे। Awesome. Very interesting quotes. सुरेश बाबू, आप यूनिवर्सिटी के बिहाफ में अनाउंस कीजिए मैडम। जल्दी हो जाएगा। आज के इस महफिल आयोजन में मंच पर उपस्थित मिथिला विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्रतिकुलपति, सम आदरणीय मंचस्थ एवं सभागार में उपस्थित विद्वजन, मैं आप सबों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन पदाधिकारी के रूप में कार्यकाल जब तक का हमने संभाला है, इसके विषय में आप लोग बखूबी जानते हैं। आज हम अपने बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र देना चाह रहे हैं। इस कार्य हेतु सम्माननीय प्रतिकुलपति महोदय से हम आग्रह एवं निवेदन करना चाहेंगे कि वो उन्हें
पेंशन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करें। मुस्कुराते रहिए। विश्वविद्यालय के हमारे दूसरे कर्मी, इनके बारे में कुछ कहूं उससे पहले मैं दोनों के रूप में संयुक्त रूप से कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच दोनों ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को इस तरह किया है, जिया है, जिसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि आज अपना है कल किसने देखा है। आज अपना है कल किसने देखा है। अगर हम अपना आज नहीं संवार सके तो जिंदगी समझ लो धोखा है, जिंदगी समझ लो धोखा है। जब से मैं सर को जानता हूं, इनके स्वभाव में, चेहरे में या कार्यशैली में कभी भी परिवर्तन नहीं पाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये चिरकाल तक ऐसे ही रहे। दोनों ही हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहेंगे जीवन के आखिरी क्षणों तक। आगे भीम महतो जी जो माननीय कुलपति के सचिवालय में कार्यरत हैं, मैं माननीय कुलपति महोदय से प्रति कुलपति महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेश पासवान सर, पेंशन ऑफिसर। इनकी कंट्रीब्यूशन की लिस्ट बहुत लंबी है और समय के अभाव के कारण उसे हम चूक रहे हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोवेसी मैम टू कम टू द स्टैंडिंग डाइस एंड एड्रेस द सेशन। सभी को मेरा नमस्कार and very good morning. We have with us distinguished personalities on the dais and in the audience. On the dais, unfortunately, we are missing our Honorable Vice Chancellor, Professor S.P. Singh today because of his some very important engagement. He has to go to Patna. And we have with us the former Vice Chancellor of PKS University, Professor Nand Kishore Jha, Professor Nand Kishore sir, who delivered the keynote address on this very important occasion. Our dynamic registrar, the Dean, Faculty of Sciences, Professor B.S. Jha, the head of the Department of Botany, Professor S. Jamil, the financial advisor of the university, Sri Kailash Ramji. And on the other side of the dais, we have very, very important personalities. The most importantly, the today's hero, I can say, Dr. K.K. Sahu sir, and of course, Madam Sahu, Madam Madhu Sahu. I, on behalf of the university, and on my personal note, I welcome you, madam. Others are our own people, so I especially welcome
Professor Nand Kishore Saab and Mrs. Madhu Sahu ma'am. And this moment, I can say that it's a mixed feeling. At one end, I am feeling happy, and at the other part of me is also sad, because we are going to, I cannot say that we are going to lose, but I may not be meeting a person like Professor K.K. Sahu very often now onwards, after today. So it's a mixed feeling today, and first of all, I would like to congratulate the Department of Botany for starting or initiating this wonderful trend of organizing a lecture on the occasion of farewell of a teacher. So this is a very wonderful thing. ये बहुत अच्छी एक परंपरा की शुरुआत हुई, और इसके लिए मैं वनस्पति विभाग को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ. And I also extend my greetings to all of you who are here. First of one thing, the COVID, because of the COVID pandemic situation, we have to use mask, and now because of the winter, many of you are also using the topi. So identity, I cannot recognize all because of these two hindrances. I extend my heartfelt gratitude to all of you for being here and listening to me. I extend my greetings to all of you. The lecture series that is started today with the wonderful lecture of Professor Nand Kishore Saab on the topic Glimpses of Biotechnology in the Crop Disease Management is very, very informative and useful, and I hope the students community particularly, they have enjoyed it. If I talk about myself, then I have not studied bioscience during my student days, and I have a very limited knowledge of biology, but I also enjoyed the lecture very much. The gene technology or gene editing is a very important area, and as Professor Shah mentioned, that we can choose or can select a gene and place it as the site of our choice. This is how wonderful thing, and this is going to, it is in fact already solving the problem of crop production as well as crop management, and giving food to millions and billions of population that is increasing day by day. Some of us, we do not believe in science. I feel sorry for them, because science is progressing very fast. In olden times also there was science. Maybe the nomenclature was different, but man from the very ancient time is using science and doing science. The science that we see today is different, but there is an inherent ability in humankind or human race that has been using science for its survival, for improving its quality of life. So without science, we cannot imagine giving food to so many populations. We cannot imagine addressing the pandemic that we have done today. So it is the age of science, and our Constitution also talks of science, scientific temperament. So I am very grateful to Professor Shah for delivering this wonderful lecture on this occasion. On behalf of the university community, I thank you, sir. I express my gratefulness to you. All my previous speakers spoke very wonderfully, and I admit that today I have heard a very scientific lecture, or I can call that a very scientific farewell lecture from our Dean, Faculty of Sciences, Professor B.S. Shah. I will always remember this lecture, and if I can get a part of his lecture, I won't mind copy pasting it in my future lectures or addresses.
So please, if I do that, excuse me from plagiarism. So this is a one. I can say we are going to lose one of our colleagues. I will not be meeting him very frequently because I consider that he is a person of many abilities. Not only he is a good teacher or a sincere teacher, but he has contributed the university in many other ways. And I consider myself fortunate that I also got a chance to work with him. So, Professor Sahu, your legacy of hard work, selfless commitment, and teaching we'll always remember. The university will gratefully acknowledge your services as a teacher, as an administrative worker, and what not. You have contributed many things. When we talk of biotechnology or the crop production and crop management through biotechnology, the term ethics is also very, very important. In the development of biological sciences today, the ethical aspect is very important, and I am happy that Dr. Sahu also has a command on ethics, because last time when we are arranging classes for AECC 1, AECC 2 and GES, he happily shouldered so much burden to study new topics and deliver lectures for our students. And there he also gave wonderful lectures on sociology as well as ethics. So I think with your so many attributes, and as Professor B.S. Jha has mentioned, you are not going to sit idle. Rather, you will be using both the hemisphere of your brain more effectively and contribute exponentially. You are about to board a really long flight now. The flight will take you to a beautiful destination. It is called retirement. It is the second innings. Now is the time to do things you have always wanted to but did not get time to do that. Now is the time to enjoy all the things which eluded you. Now is the time to catch up with old friends and distant relatives which you cannot contact before because of your work pressure. Now is the time to work in a relaxed way and enjoy your work. Relaxing and unwinding will get you to more peace and more creativity. So wish you all the very best. Thank you all. Now I request the PG Department of Botany to present a gift of token on behalf of a whole entire Botany Department from the hands of Prof. Ma'am. And a big round of applause, please. It's a very memorable moment. मैडम आपको दिया जा रहा है आप
हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप 2 वर्ड बोलेंगे। हाँ भाई आप पहले बोल देते सब क्यों? ठीक है ठीक है। With due course of time, now I request the superannuation hero person, Professor K.K. Sahu, to come to the dais. आदरणीय प्रोवीसी प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम, मंच पर बैठे इस विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी, वित्त सलाहकार, कला सांगी, मंच पर बैठे हमारे आज के विशेष अतिथि प्रोफेसर एम.के. शाह, जिनका परिचय हमसे पहले से निश्चित ढंग से बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत ज़्यादा है। हमारे इस विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी ऑफ साइंस प्रोफेसर बी.एस. झा, जैसा उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि मैं इनके साथ इंटरेक्शन में बहुत कुछ सीखा, टेक्निकल चीज़ भी, नॉन टेक्निकल चीज़ भी, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ भी। हमको जब कभी कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं सबसे सीधा इन्हीं से बात करता हूँ, क्योंकि इनका अपार बुद्धि, अपार ज्ञान इस विषय के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा हमारा साथ रहा। इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शाहनाज जमीली, हमारे सामने बैठे हुए हमारे DSW साहब विजय जी, CCDC महेश जी, पेंशन पदाधिकारी सुरेश पासवान जी, केमिस्ट्री के अध्यक्ष K.K. झा सर जी, विद्यानाथ जी, हीरा बाबू, हमारे विभागीय कलिक गजेंद्र जी और राम रजा जी, हमारे परिवार के मेरे बेटे, मेरी वाइफ, मेरे पोता नाती जो आज यहाँ मौजूद है, ये हमारे बहुत गर्व की बात है। मेरे डियर स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद हैं और करीब सैकड़ों स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बॉटनी के, सबका हृदय से आभार। मैं जब विश्वविद्यालय आया और महाविद्यालय से आया तो मैं कुछ डिफरेंट व्यक्ति हूँ, नजरिया मेरा कुछ अलग है काम करने का। मैं वो आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। लोग हमको अक्सर कहते हैं कि आपकी कार्यशैली से इस सरकारी नौकरी के काली कोठरी से बेदाग आप बाहर निकल रहे हैं। सब कहते हैं, सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक जो हमको जानते हैं महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से दोस्त, आप बेदाग उस काली कोठरी से बाहर निकल रहे हैं। ये प्रचलन भी कहते हैं लोग कि यह सरकारी नौकरी काली कोठरी जैसा होता है, जो अगर बिना काली निकले घर से उस रूम से बाहर निकल गए तो बहुत बड़ा बात है। सब लोग कहते हैं और मैं उसमें भाग्यशाली हूं कि निकल रहा हूं, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं। मैं तो उस भूमि को देखता हूं, उस खेत को देखता हूं, उस फुलवाड़ी को देखता हूं जिस पर हमको काम करना होता है, जिसमें उसमें पैशन से उसको और खूबसूरत और ज्यादा खेती करके अच्छे अच्छे पौधे लगाने की प्रक्रिया से मैं काम करता हूँ। कभी मैं सोचता ही नहीं हूँ कि इस खेती करने में या फूल लगाने में, सुगंध पैदा करने में कोई हमको मिट्टी लग जाए, कालिख लग जाए, और जब मैं फुलवाड़ी तैयार करके बाहर निकलूँ तो हमको देखूँ कि कहाँ कालिख लगा। ये कभी भी मेरा नजरिया नहीं रहा है, चाहे वह क्लास का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे किसी तरह का बोल्ड काम करना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मायने में, विश्वविद्यालय ने हमको बहुत ज्यादा भरोसा डाला है। अभी मैं 9 ऐसे पोर्टल पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन दिया हुआ है, VC का काम को दिया गया है, चाहे वो PFMS का हो, UGC का हो, रूसा का हो, UGC का हो, कई स्कॉलरशिप का हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हमको बनाया है। हमको नेट से करने के लिए हमारे एडवोकेट से सब चीज होता है। ये विश्वास जो हमको विश्वविद्यालय ने हमको 9 ऐसे
कठिन काम के लिए अधिकार दिया हुआ है, ये साधारण चीज नहीं है जो जनरल लोग को नहीं दिखाई पड़ता है। वहां पर भी मैं खुशबू पैदा किया हूँ, पेड़ लगाया हूँ और वो फल फूल रहा है। वो काली कोठरी नहीं है काम करने के लिए, वर्ग में क्लास लेने के लिए, छात्रों के साथ काम करने के लिए। मैं हमेशा यह एक्सपेरिमेंट ही करता रहा, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैं कैसे बच के निकल जाऊं। यह मेरा स्वभाव कभी नहीं रहा है। मैं आज के दिन अपने जीवन का 2 महत्वपूर्ण घटना सुनाना चाहता हूं जो मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया था। बहुत चीज हमको देखने को मौका मिला। वो 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक के रूप में 2 बातें बताना चाहते हैं। हमारा अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट होता है कोई डिग्री, पेपर पर लिखा हुआ। अचीवमेंट होता है शील्ड या कई तरह की चीज जो घर में सजाए जाते हैं। मैं उसको अचीवमेंट नहीं मानता। मेरा अचीवमेंट ये मैं मानता हूं कि मैं कितने लोगों को दिल परिवर्तित किया हूं, कितने लोग मेरे दिल से अटैच हुए हैं, कितने लोग मेरे साथ हाथ में हाथ हंसता मुस्कुराते मेरे पास आए हैं और वह लंबा धारण किए। इस सिलसिले में 2 आपकी बातें घटना मैं बताना चाहता हूं जो मेरा जीवन को बहुत आश्चर्य लगा था कि ऐसे ऐसे रिवार्ड भी जीवन में थे। बिहार विश्वविद्यालय में आज से करीब 10-12 साल 15 साल पहले, जिसमें व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नया नया आया था, वहां पर एक आईटी का एक नेशनल सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में वीसी थे और चांसलर थे, गवर्नर थे और पूरा खचाखच भरा हुआ था हॉल, ऑडिटोरियम। मैं उसमें नहीं था। वहां पर उद्घोषक ने बताया कि इंटरनेट चालू हो गया है और पूरा विश्व एक ग्लोब हो गया है, सो कहीं से कहीं भी लोग आ सकते हैं। सो उस फंक्शन में 10-12 साल पहले के इनॉग्रेशन फंक्शन में अनाउंसर ने अनाउंस किया कि यह पूरा विश्व ग्लोब में एक जैसा हो गया है और एक अभी उस बिहार विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति अमेरिका में एक बहुत बड़े संस्थान में अच्छे पद पर काम कर रहे हैं और वो पहली बार इंटरनेट के माध्यम से लाइव वीडियो चैट करेंगे। वहां पर चांसलर, वाइस चांसलर सब बैठे हुए थे और बड़े पर्दे पर वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुआ। उस जमाने की बात है क्योंकि बहुत नया चीज था उसमें। मैंने बताया फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं था उस पर। उन्होंने लाया और वहां पर एक अच्छे मैनेजर ऑनलाइन हुए। चांसलर ने कहा कि आप कहाँ से हैं, तो मैं यूएस के इस शहर से इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा रिवार्ड है, सर्वप्रथम मैं के साहू को चरण स्पर्श करता हूँ। पहला वर्ड उन्होंने बोला, जिन्होंने मुझे एक सिविल इंजीनियर से कंप्यूटर इंजीनियर बनाने का तरीका बताया। हम वहां नहीं थे। चांसलर के ऑफिस से फोन अकाउंट के साहब का हम तो अपना बीआरबी कॉलेज में थे, हमको मालूम हुआ। उससे ज्यादा हमने उसे इंटरेक्शन नहीं किया था, सिर्फ जीवन के थोड़ा सा पहलू को समझा था, डिस्कस किया था। ठीक वैसे ही एक और घटना मैं आपको बताता हूँ जिसको कहा जाता है वो रिवार्ड है। कोई भी पैशन से ऐसे नहीं ऐसे जुड़ा हुआ, उसको एक और घटना सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट मेरे पास रहा, किया, कमाया उमाया, बहुत जगह गया। दिल्ली में वो मकान बनाया। मकान बनाने के बाद जो उसका एंट्री था, जो गृह प्रवेश था, हमको फ़ोन किया कि सर आप आइए, इतना तारीख को गृह प्रवेश है मेरा। हम कह रहे हम बहुत व्यस्त हैं, आना मुश्किल है। बहुत जिद किया कि नहीं आप आना है, आना है। तो हमने कहा कि क्यों? नहीं आप आना ही, हम नहीं आ सकते हैं। तो कहा, उन्होंने एक बड़ा गहरी बात बताया मेरे स्टूडेंट ने कि सर अगर मेरे पिताजी नहीं आते तो हमको दुख नहीं होता, आप नहीं आइएगा तो मुझे दुख होगा। हमें बाप इतना जुड़ गया हमसे, ही पिता से ऊंचा कर रहा है। हम ऐसा हुआ तो बोले जरूर आएंगे। हम दिल्ली गए, उसके गृह प्रवेश में रहे भी एक दिन उसके घर में, नए घर में। कल होके नाश्ता करके जब निकल रहे थे तो कहा कि सर आपने मेरा घर नहीं देखा। सब चीज देखा, इतना रूम है, इतना बेडरूम है, ये है वो सब है। नहीं आप किसे नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है? आप देखा है कि अपने घर में हम कोई भगवान का तस्वीर नहीं लगाए हैं, मुझे गौर नहीं किए।
और आप नहीं देखा कि सिर्फ एक तस्वीर आपकी लगी हुई है मेरे घर में, उस घर में सिर्फ एक आपकी तस्वीर लगी हुई है, किसी भगवान की तस्वीर नहीं है। पता नहीं क्या कैसा हमने देखा, क्या हमसे सीखा, ना फिलॉसफी, ना धर्म, ना बॉटनी, ना कंप्यूटर, कुछ नहीं, पता नहीं दिल से क्या उसको लग गया। मैं इसको अचीवमेंट मानता हूँ, मैं इसको रिवार्ड मानता हूँ। फॉर्चुनेटली वह स्टूडेंट आज ही मेरे पास आया हुआ है, दिनेश जी खाली खड़ा हो गया, ये मेरे बहुत बड़ा गर्व की बात है। एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में। मैं हाथ मेरा बहुत खुला है खर्चा करने के लिए, सब लोग जानते हैं, हमारे सब परिवार का है ये, परिवार में सब लोग हैं जो हमारे खानदानी खून में है कि ऐसे हाथ नहीं रहता है, हमेशा हाथ ऐसे रहता है, देने की प्रवृत्ति है। जहाँ कहीं किसी को कुछ देखते हैं, अगर पास में पैसा है तो निकल जाता है बिना सोचे हुए किसको दे रहे हैं क्या नहीं। मेरी प्रवृत्ति सब लोग, मेरे आसपास के लोग जानते हैं, और मैं कभी सोचता भी नहीं। अरे 3 लाख रुपया हमको मंथली मिलता है, उसमें 70-80 हज़ार टैक्स दे देते हैं, भगवान को, सरकार को दे देते हैं, और 5-10 हज़ार अगर मेरे लेफ्ट राइट में खर्चा होता है तो कहाँ खलता है, कहीं नहीं खलता है। तो यह जीवन के गणित को लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। यह चीज को, पैसे की गणित को, फाइनेंशियल चीज को हमारे वैसे से आप जो बताते हैं, इनकी भी सूझबूझ वैसे ही आध्यात्मिक है। वही आत्मा पता नहीं कहाँ सर लेके विश्वविद्यालय में आए हैं कि जब भी इनसे साथ बैठते हैं तो वैसी वैसी बात करते हैं। यह किस प्रकार से फाइनेंस के बारे में, तो इस प्रकार से यह गणित को, फाइनेंस के गति को समझें आप लोग, दिल से लोगों को जुड़े, और यही सबसे बड़ा रिवार्ड है। और मैं इसलिए इस विश्वविद्यालय को जहाँ कार्य किया हूँ, और मुझे वहाँ BRB कॉलेज में जब काम किया, फिर यहाँ आया तो काली कोठरी से बगैर दाग से मैं निकल रहा हूँ। इसलिए मैं BRB कॉलेज और यहाँ के विश्वविद्यालय को मैं नमन करता हूँ। और इस विभाग के अध्यक्ष महोदय ने हमारे लिए यह आयोजन किया, और इस आयोजन के तहत एक अच्छे रिसोर्स पर्सन को बुला के लाया। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैडम आपको, जो मेरे इस आज के दिन की ऐसी अच्छी व्यवस्था आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. And thank you very much all for coming here, gathering here. इसके बाद भी कुछ है
हम अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो सर से पहली बार हम इंटरेक्ट हुए हैं अच्छे से, लेकिन इससे पहले भी मैम के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें सर के बारे में जानने को मिला। जैसे कि सर का जो पहले सर किस तरीके से पढ़ाई करते थे बस में बैठ के और किस तरीके से पढ़ते थे, वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करता है जब मैम कुछ चीज़ें शेयर करती हैं हम लोगों से। हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मैम भी हमारे साथ हैं। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया है LNU के अंदर, मेरा कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ डिपार्टमेंट में आया हुआ, करीबन 1 ईयर हुआ है। और सर से मैं पहली बार इंटरेक्ट हुआ हूँ, पहली बार। और इससे पहले कोई भी किसी भी तरह का पर्सन मिला और सर के बारे में कोई भी कमेंट किया, वो हमेशा पॉजिटिव कमेंट था। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि मतलब कुछ तो बात है सर में कि हमेशा हर जगह जाओ, हमेशा मतलब हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टाफ्स हो, चाहे मैम हो, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, हमेशा तारीफें मिली हैं। तो सर आप जो है हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन है कि हम आपकी तरफ बने। और सर मैं चाहूँगा एज ए स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर, आपने अपनी जर्नी जो पढ़ाई की जर्नी है उसमें क्या क्या फेस किए, अभी के टाइम में क्या है सर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे एज ए रिसर्च स्कॉलर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपने भी फेस किया होगा अपने स्टडी के दौरान। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चाहे स्टडी प्रॉब्लम हो, सर उससे कैसे आप बाहर निकले, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, हम लोगों को बताएं ताकि हम मोटिवेट हो सके सर। ठीक है मैं इतना ही चाहता हूँ सर से। आदरणीय एचओडी मैम एवं मेरे गुरुदेव के साहू सर, RN झा सर, अंकित सर एवं मेरे ब्रह्मा समान गजेंद्र सर, जिनके बदौलत आज आपके सामने में खड़ा हूं, एवं सभी मेरे बड़े छोटे और अपने से जो साथी हैं, सभी को मेरे इस समारोह में अपने गहरे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का जो दिन है वो एक यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो है विकास पदाधिकारी, सिर्फ ये हमारे लिए टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, एक डेवलपमेंट ऑफिसर का विदाई समारोह है। और ये विदाई समारोह एक, जैसे कि सभी सर बताए हैं, जो ये साइकिल है ये चलता ही रहता है। खैर वो सबको निभाना है, लेकिन जो सर के साहू सर का बात रहे, मैं उसको 2 लाइन में ही समाप्त करेंगे। सबसे पहले मैं जब MSc करने यहाँ पहुंचे CM साइंस से, तो पहला क्लास साहू सर का मेरा हुआ, सबसे पहला क्लास। हम ऐसे थे, थोड़ा बच्चे टाइप ऑफ बचपना हमें है, बैठ घुस गए, सर बोले इधर आओ, बोले सॉरी सर क्या नाम है ये देखा, तो हम अपना रसीद दिखाए तो सर रोल नंबर लिख लिए, अच्छा चलो ये रोल नंबर है, ठीक ठीक। उसके बाद हम सर का पहला क्लास देखे, हम भी कोचिंग पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का जो एक्शन देखे बहुत अजब लगा। मतलब एक एक्टिविटी होता है ना पढ़ाने का, वो बहुत मतलब स्लोली बोलकर अपने एक्टिविटी को मतलब दर्शाना, हम शायद किसी किसी टीचर में देखते हैं, वैसे बहुत टीचर देखे हैं आते हैं मतलब ये करके, लेकिन जो एक्टिविटी होता है बच्चों को आकर्षण करने का, मतलब मन नहीं हटेगा कि मतलब फेस से दिमाग में हटेगा कि बात और कहे सर, और कुछ टॉपिक बोले इसमें, मतलब एकदम
उसमें न्यू हो जाते थे हम लोग। और सबसे गहरी यही हमको एक्टिविटी के कारण सर से बहुत आकर्षण, हम चाह रहे कि सर हमसे बहुत मतलब सर के साथ बहुत देर हम बिताएं, जिसके कारण ये गजेंद्र सर साहू सर हम पे विश्वास किए और अपने चाबी अपने ऑफिस का मेरे हैंड ओवर किए, जो अपन 10 सर्टिफिकेट के लिए मैंने लगभग 6 मंथ से इसका काम किए विश्वास लेकर, और इस विश्वास में कोई दाग नहीं आया, वो साहू सर ही जानते होंगे। और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं सर को दिल से धन्यवाद करते हैं। एवं सर जब कोचिंग पे आए मेरे कोचिंग पे, तो सर का जो हमको नहीं लग रहा था कि डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे भी कोचिंग पे पधार चुके हैं। हम लोग तो है डिग्री इलाका से, तो सर वहां भी आए तो ऐसा लगा कि नहीं, ये अपने आप में होता है ना कि हम डीएम है, एसपी है या डीओ है, कैसे जाएंगे, तो ये सर में नहीं, ये बहुत हम लगते हैं कोई ऑफिसर में पहली बार हम देखे ऐसा। ये बहुत ही मनमोहक रहा और सभी बच्चे से मिलजुल कर एक लीडर के समान डिपार्टमेंट को चलाना। जहां भी हम छात्र संघ से भी जुड़े हुए हैं तो कहीं भी गए तो सर का नाम साहू सर है। साहू सर बहुत सुंदर। यहाँ के दिलीप कुमार चौधरी जो सीएम साहब के कल प्रिंसिपल बनेंगे, उनके पास भी गए तो सर का बोले बहुत सुशील सर है, वो उनका बात है, क्या बात है, बोले उनसे हम करते हैं। उनका सर का तो पूरा फेमस है। आप सभी बता रहे थे कि कोई दाग नहीं, रियल में कोई दाग नहीं। यूनिवर्सिटी से लेकर विश्वविद्यालय से लेकर कोई छात्र संघ नहीं, कोई छात्र नेता नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, सर भी बोले यहाँ नहीं, मुजफ्फरपुर में भी नहीं कोई दाग। ये बड़ी बात है मेरे लिए। और ऐसा शिक्षक होना जो हर विद्यार्थी को दिल पर राज करना बड़ी अनुभवी की बात है। और बहुत ही ये किसी में करने की क्षमता होती है कि सभी को एक पटरी पर ले चलना, सभी को एक पटरी पर ले चलना। और साहू सर में एक और खासियत रही है कि जब भी कोई फंक्शन हो या ये हो, खुद ही उसका एक पहले से टारगेट बना लेना, हाँ ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। उस काम को करने के लिए सर 2, 3, 4 रोज पहले से अपना ऑनलाइन तकनीक, तो हम क्या करते थे, यूट्यूब जब से ऑनलाइन क्लास हुआ तो गजेंद्र सर के पास हम अक्सर रहा करते हैं, तो देखिए कि सर टेक्निक सीखते थे सर का, मतलब क्या क्या उसमें यूनिक डाले हैं सर, तो वो हम यूट्यूब से अभ्यास करके सर का कॉपी करते थे, मतलब कुछ सीखने की इच्छा, क्योंकि हम सर का जो एक्शन था पढ़ाने का वो हमको बहुत ही मन को मोह लेते थे, क्योंकि जो पढ़ाने का एक्शन है, बॉडी लैंग्वेज है, बहुत अच्छा, वेरी स्मार्टनेस। तो इसलिए हम सर को कहते हैं कि आपके साथ जो भी हम किए हैं, खैर 1-2 साल 2 ही दिन जो भी दिन रहे, उसमें हमसे जो भूल हो वो हमेशा के लिए क्षमा प्रार्थनी है, क्षमा चाहते हैं आपसे। और हम पे विश्वास करने के लिए, चाबी देने के लिए अलग से हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने भी एक छोटा बच्चा को विश्वास लायक इस विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में रखा, जो बहुत ही विश्वसनीय है। एवं कार्य करने का कुछ फ्री ऑफ फंड में कार्य करने का कुछ हमको आप प्रेरित किए, कुछ सीखने का आप हमको बार ऑफिस में सिखाते थे, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे, वही हमारे लिए पैसा था, वही हमारे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं था, मेरे लिए कुछ सीखना भी बहुत जरूरी था। कोई भी काम रहे, या आर्य झा सर या मेरे एचओडी मैम का है या और गजेंद्र सर का है, हम कभी भी नहीं ये कहते हैं कि हमको पोस्टर लगाना है कि हमको चेयर पर बैठना है। हम इसी कारण इस विश्वविद्यालय में हम पीएचडी स्कॉलर ना होकर भी इतना गहरे से जुड़े रहे सभी टीचर के साथ, और उसमें के साहू सर डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ, वो हमारे लिए बहुत ही सहानुभूति जगाने वाली बात थी। और जाते जाते सर से यही कहेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जाते जाते सर भूल नहीं जाइएगा, और हम लोग खड़ा होकर इस सॉन्ग को मात्र 1 मिनट दोहराएंगे, 1 मिनट खड़ा हो जाइए सभी, रिक्वेस्ट आए। अब ताली के साथ
थैंक यू। समझाएंगे सर को कि कभी अलविदा हम लोग को न कहिएगा सर, जिस प्रकार साथ दिए उस प्रकार आगे भी हम लोग का साथ दीजिएगा। कभी जहाँ भी रहिएगा जरूर हम लोग का हेल्प कीजिएगा, यही आपसे मन्नत, यही विनती। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए, दिल से शुक्रिया। श्रीकांत ने बहुत सारी बातें कह दी, मतलब एक स्टूडेंट ने पूरा, मतलब सर का कंट्रीब्यूशन क्या करें, पूरा महफिल को, एक बोलते हैं ना महफिल को बना देना, तो सूर्यकांत ने महफिल बना दिया। और कहीं ना कहीं महफिल जाते जाते बनना भी चाहिए। शुरुआत जिससे मस्ती से होता है तो जाना भी मस्ती के साथ, हंसते हंसते ही जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? रोशन कुमार। रोशन, हाँ, रोशन कुमार जी अब आएंगे, बोलेंगे, उसके बाद साहू सर बोलेंगे। आदर्श चरित्र, विराट व्यक्तित्व के आदर्श व्यक्ति मेरे अभिभावक, कहने में कोई शिकायत नहीं है, मैं इन्हें बार-बार प्रणाम करता हूँ। मैं मैथिली का स्टूडेंट हूँ, बस 1 से 2 बार डेवलपमेंट ऑफिस गए थे कुछ काम से, तो सर आने का कभी मौका ही नहीं दिया कि बार-बार तुम आना, क्योंकि ये सोशल साइटी के माध्यम से काम को कर देते थे। वैसे ही इनका जो आदर्श व्यक्तित्व है इतना ज़्यादा मुझे प्रभावित किया। कहाँ हम मैथिली का स्टूडेंट, कहाँ बॉटनी का ही प्रोफेसर, लेकिन इनका विनम्रता, इनकी व्यक्तित्व इस तरह से प्रभावित किया है। आज हम यूनिवर्सिटी आने वाले नहीं थे, फिर भी मुझे वो खींच करके यहाँ तक लाए हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, आप सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, मेरे दिल से कभी भी निवृत्त नहीं होइएगा। जब भी हम डेवलपमेंट ऑफिस जाएंगे उस कुर्सी पे हम आपका ही छवि देखेंगे, और जैसे ही कुर्सी को देखेंगे तो बस आपका जो मानस पटल पे जो फोटो बना हुआ है वो याद आ जाएगा। तो बस हम आशीष लेने के लिए, आपके जैसे आदर्श तो नहीं बन सकते हैं, बस आशीष वचन के लिए हम यहाँ जैसा कि सर ने कहा था कि अचीवमेंट वो नहीं है जो आप घर में ट्रॉफी के साथ रखते हैं, और आज जो सर अचीवमेंट यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो कहने की जरूरत नहीं है, हर दिल में बस रहे हैं, हर किसी के मन में बस रहे हैं, और जो मन में बसते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। अभी सब कह रहे थे कि कुछ भी होगा हम लोग सर से कांटेक्ट करेंगे, तो सब गए था, सर तो यही हैं। तो अब जो है सो स्टूडेंट ने कहा था कि सर वो सुनना चाहते हैं कि उन्होंने उस फेस से कैसे अपने आप को बचाया, जब पैसे की कमी थी या जो भी एक रिसर्च स्कॉलर को फेस करना पड़ता है, तो इस पे सर से जो डिमांड करी थी, तो सर अब आ रहे हैं। मुझे बहुत बातें करनी है, बातें इतनी हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे कहूँगा। आप लोगों के बातों से सुनकर मेरे जीवन का विभिन्न पहलुओं को विभिन्न एंगल से देखेंगे तो शायद मैं कुछ अपना आपको सामने दे सकता हूँ। अभी मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूँगा एक आत्मकथा अपना लिखने का, ऑटोबायोग्राफी में लिखूँगा, जिसमें कि मेरे जीवन के सारे पहलू को देखने का मौका मिलेगा। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत तरह की चीज़ें हमने देखी है, बहुत चीज़ सीखी है, बहुत तरह की चीज़ सीखी है, अनोखी अनोखी बातें सीखी है, जो बहुत बुजुर्ग से हमको नहीं दिखाई पड़ता है। मैं खुद अनुभव करके गुजरा हूँ, मैं सब लेवल में, सब तरह की चीज़ में। तो वो डिटेल तो मैं कहीं मौका मिलेगा तो अगर मैं ऑटोबायोग्राफी अपना लाइफ का लिखूँगा, बचपन से लेकर अब तक का, तो सब जीवन को आप देखेंगे कैसा एक साधारण व्यक्ति पैदा होता है और जीवन के परिप्रेक्ष्य से कैसे बदलता जाता है, उस ऑटोबायोग्राफी में शायद आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ाई के क्रम में, मेरे बच्चे लोग यहाँ पर हैं, मेरा बड़ा वाला बेटा का छोटा सा पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ, तो शायद आप उस पर आप लोग सीख पाएंगे कि कैसे मैं बच्चे को पढ़ाया था। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत 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 कमजोर था, क्लास 3 में फेल कर गया था। जब मैं प्रभात तारा में, वहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है वहाँ पर, वो 4th क्लास में उसको ले जाने का था लेकिन नहीं जा सका, तो 3rd क्लास में जिसमें पढ़ा था फिर दोबारा हम खुद लेके गए उसको। प्रोमोटेड उसके बैच के बच्चे जितने थे वो अगली क्लास में न जाके
उसे जूनियर की क्लास में बैठने को ले गए। ये तो बच्चा था, उसको तो समझ में नहीं आता था, पढ़ना है जाना है तो पापा जैसे करते ले जाएंगे। लेकिन जब मैं उस क्लास में इसको उंगली बैठ ले पकड़ के उस क्लास में जब घुसा तो उसको क्या, हमको बहुत खराब लगा कि नहीं, इसमें बच्चा मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पढ़ाई नहीं कर सकता है। जब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि हम कमजोर हैं तो पढ़ाई थोड़ी होती है, पढ़ाई हो नहीं सकता है, उसको कुछ सीख नहीं सकता है। नेक्स्ट डे हम उसको स्कूल से नाम कटवा दिए, तो वहाँ नहीं जाना, दूसरे स्कूल में जाना है। ये पहली बात कि जब तक आप में कॉम्प्लेक्स है किसी चीज़ का कि हम कम जानते हैं, कम पढ़ते हैं, कमजोर हैं, तो हडल करता है आपको। ये तो बिल्कुल आपको दिमाग से पहले हटा देना है कि आई एम नॉट ए इंफीरियर स्टूडेंट। हर एक व्यक्ति अपना अपना यूनिक है अपने आप में, हर एक व्यक्ति यूनिक है, सब में पोटेंशियल अलग है। मेरा वही बेटा मैट्रिक में जब परीक्षा जब गया देने के लिए तो हिंदी में फेल कर गया। हिंदी में कहीं कोई फेल करता है? मेरा बेटा हिंदी में फेल कर गया मैट्रिक में, और समय काफ़ी अच्छा है, साइंस में, इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, ये है। कंप्यूटर पे उसमें 6th-7th में था, उसमें बाइजर में कंप्यूटर आया था, वो सौंपते थे आते। उसका दोस्त कहाँ है तो स्वीडन में एक है, तो वो वहाँ चैटिंग कर रहा है, अंग्रेजी काफ़ी अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी सीख गया है, मन खुल गया है, जो पढ़ने का सीखने का सारा अपॉर्चुनिटी साफ कुछ आ गया है, पढ़ने का एक अनोखा तरीका डेवलप कर गया। लेकिन मैट्रिक ही नहीं कर पा रहा था बेचारा, हिंदी फेल कर गया था। किसी स्कूल से पढ़ा के सप्लीमेंट्री परीक्षा दे के उसको मैं मैट्रिक पास कराया। उसके बाद इंटर कैसे कैसे कराया, कहीं पढ़ा के किसी की तरह के, लेकिन बेसिकली तो इंटेलिजेंट था, बेसिकली के साहू का खून था उसमें, तो तेज तो था ही। तो उसके बाद इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग करके वक्त पहला अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा भी चला गया, और बढ़ती होती गई। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने, आज हम मेरे पूरे बड़े बड़े खानदान में अकेला वो है जो कि एक अनोखा बेटा है मेरा। लोग कहते हैं कि किसी का बाप होता है रईस, तो हम लोग बेटा लोग उसको फुटानी करते हैं, हम तो गर्व से कहते हैं मेरा बेटा वो रईस है, जो हम फुटानी करते हैं। हमारी कुछ इच्छा होती है तो बच्चा लोग का खर्चा वहाँ से आता है, कुछ एहसास हुआ कि तुरंत आ गया कि तो 1.5 लाख का ये ले लीजिए, तो गाड़ी आपको 16 लाख का भेज देते हैं, तो ये भेज देते हैं, फुटानी हो गया। वो चीज़ को पढ़ने के, समझने के जो हिसाब से क्वालिटी खुद डेवलप किया। ये नहीं कि ट्रेडिशनल पढ़ाई करना है, ये सिलेबस है, पढ़ना है, डिग्री हासिल करना है। जो इच्छा हो पढ़ने का वो परीक्षा करेंगे तो कहीं हटल आता ही नहीं है। ये पढ़ाई का पहला नियम है। आप अगर कोई पापा मम्मी टीचर सब समाज जो कहता है ये कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, तो ये कर लो, तो वो कर लो, ये कर लो, वो पढ़ाई है ही नहीं। अपना इंटरेस्ट देखिए तो सही, किस चीज़ में आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या पढ़ाई करना है, वो कहीं कोई हर्डल नहीं आता है। एक मूल बात ही है कि हम पहले से सप्रेस्ड हैं एक साइकोलॉजी से, एक रूल एंड रेगुलेशन से कि हमको मैट्रिक करना है, इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है, पढ़ लेना है, डिग्री लेना है। और डिग्री किस काम में? कोई काम का नहीं है जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकल अप्रोच, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट नहीं जुड़ता है। यह बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो आप 7th में, 8th में, 9th में या MSc या PhD कर रहे हैं, आप जो जिसे को पढ़ाई करते हैं, क्या आपने देखा कि यह काम हमारे समाज में कहाँ किसके लिए हो रहा है? ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कुछ काम कर रहे हैं, आप यह कोई केमिकल बना रहे हैं, नेट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसका रियल एस्पेक्ट कहाँ यूज हो रहा है वो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई किस काम का है? आप अगर कुछ आप एक न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, परीक्षा से हिसाब कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई छोटा सा कोई ठोकर मार के बॉल गिर के कैसे गिर रहा है नहीं समझ में, वहाँ पर जोर पाते हैं अपना मैथमेटिक्स, तो बेकार है न्यूटन का लॉ पढ़ना। आप अगर ये कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, रट लिया, पढ़ लिया, कर लिया, और जब लाइफ में आया करने के लिए, ये तो समझ ही नहीं आता कि एटम यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा है। ये बेकार है पढ़ाई। जब तक पढ़े हुए चीज को अपने रियल लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं करके, तो वह पढ़ाई बिल्कुल कोई काम कर नहीं होता है। वही पैशन वही डेवलप करता है। एक बार जब पैशन डेवलप कर जाता है पढ़ाई में, तो अथाह जगह मिल जाता है पढ़ाई करने का। अपनी आप इच्छा इतनी जागृत होती, इतनी जागृत होती, इतनी जागृत होती है कि आप खोजते खोजते रह जाएंगे, आपको अधूरा लगेगा पढ़ाई करने के लिए। तो कभी भी पढ़ाई परीक्षा पॉइंट से, पास करने के पॉइंट से नहीं पढ़ा जाता है, पैशन के हिसाब से पढ़ा जाता है। हमारे बच्चों में यह कूड़ के घुसा हुआ है बात।
हमारा छोटा बेटा क्लास में पढ़ के आता था, एक इंटरेस्टिंग घटना सुना देते हैं पढ़ाई का। मैं छोटा बड़ा एक घटना बहुत बेजोड़ है। सब लोग हमको पापा आइडियल पापा मानते हैं, पापा तो आइडियल है, कभी गलत पढ़ाई नहीं सकते हैं, झूठा हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। विश्वास भयानक था। 3rd क्लास 3 में मेरा छोटा बेटा क्लास में आया, घर पे मुंह उदास था, लटकाए हुए था। क्या हुआ है पापा? ऐसा एक वर्ड है, कोई याद नहीं, कोई इंग्लिश का वर्ड था, आपने इसका माने ये बताया है। लेकिन हमारी मिस बोलती है क्या कि नहीं, इसका माने ये होता है, मुझे झगड़ गई हुआ है। बेटा ऐसा बात हम गलत हो सकते हैं, नहीं चलिए तो दिखाइए, डिक्शनरी में पलटे देखे, टीचर ठीक थी, हम गलत थे। तो उस दिन मेरा बेटा मुंह फुला गया। इसका मतलब है पापा इज नॉट ऑलवेज राइट। बिल्कुल सही बात है। जब तक तुम अपना एनालिसिस खुद नहीं करते हो, तो वो एनालिसिस नहीं करते हो, तो पापा हमेशा साथ नहीं है, सच नहीं है। वो सब अपना डेवलप करने का क्षमता है, अपना सीजन समझो, और सब लर्निंग का कोई लिमिटेशन है, कुछ नहीं है, सब चीज़ ऐसा ही है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो पढ़ाई में हैंडल नहीं आता है, पैसा भी नहीं आता है, कोर्स भी नहीं आता है, आपका ऑब्जेक्टिव ही करवाया हुआ रहता है। डिग्री कर लेंगे तो वो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। नॉलेज पैसा जो जुड़ जाता है तो नौकरी तो पीछे दौड़ा रहता है। आप कसम भागिएगा, कंपनी वाला पीछे पकड़ खींच के ले आएगा, अरे तो यहाँ ज्ञानी आदमी पकड़ के लाओ। तो यह एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो मैं सबको ये बात करता हूँ कि जब तक आपको समझ पढ़ने का किस पर्पस से नहीं आता है तो वो फायदे नहीं होता है। हम सोचते हैं आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। ऐसे में और कई टिप्स मैं दूंगा। पढ़ाई के दौरान भी कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। मैं खुद जब पढ़ाई करता था तो मैं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता था, प्रयोग करता था, और वो प्रयोग जब पूरा होता है ना तो बड़ा विचित्र बातें ज्ञान खुलती है। और मौका मिलेगा कभी और आपको डिटेल में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बहुत धन्यवाद सर। मैं तो आपसे 2020 से जानते हैं और लाइव क्लासेस इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना सर, वो रियल वर्ल्ड को कनेक्ट कराता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तो सेम ऑब्जेक्ट जो लाइफ में क्या होता है, कनेक्टिविटी हर चीज़ को देते हैं सर आप। बस सर मैं यही बोलना चाहता हूँ। सर आप लोग के साथ साथ मेरा भी बहुत सारा डाउट क्लियर कर दिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि हम खुद क्या करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि खुद अपना पर्पस पता चल जाए कि हम करना क्या चाहते हैं तो लाइफ में शायद बहुत सारा यूनिवर्स द्वार खोल देता है और हर चीज़ कनेक्टेड रहता है। यदि आज नहीं आते हैं यहाँ पर तो मेरा डाउट क्लियर नहीं होता। अभी पीएचडी को लेकर सर बोले क्या, पीएचडी को लेकर जैसे एलबी पर सिलेक्शन हुआ था तो एलबी पे सब बोल रहे हैं करो करो करो, इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है। पीएचडी में इंटरेस्ट है, करना है, प्रोफेसर बनना है, हमको भी लेक्चरर बनना है, हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, लेक्चर देना अच्छा लगता है। सब घर में भी बोल रहे हैं ये करो वो करो, किसी का बात कभी अच्छा ही नहीं लगता कि ये लोग क्यों ऐसे बोल रहा है। सबसे बड़ा चीज़ ना हमेशा क्या हो ना कि जो चाहे वो किए हैं। तो अभी भी इस स्टेज पर ना मतलब अभी मेरा टाइमिंग नहीं है बोलने का, अभी हमको साइलेंस हो जाना है, यूनिवर्स मेरा सारा पावर छीन लिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे यहाँ बोला गया है बोलने के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं। तो मतलब अभी मतलब सर नहीं आते आज तो बहुत सारा मतलब सर जिस हिसाब से बोल रहे थे बोलते डेट ऑफ बर्थ भी मिलता है। तो सर जो मेन डाउट था खुद को सुनना है, दुनिया को सुनेंगे तो भटक जाएंगे, तो खुद को सुनना है। तो सर गुरु आज बहुत बड़ा ज्ञान दे के जा रहे हैं यहाँ से, सिर्फ मुझे ही नहीं जितने भी लोग हैं सबको। तो सर आप हम यूनिवर्स से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे गुरु के रूप में आप आए। और यूनिवर्स क्या इंसान, हर इंसान अपने अपने यूनिवर्स है और सर हम लोग के बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। और अभी जो कुछ लोग सम्मानित करना चाहते हैं सर को गिफ्ट के साथ। सबसे पहले अंकित सर को बुलाना चाहेंगे। ये सर बनारस से है सर, ये पूरा बनारस का। अरे वाह 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 क्या बात है। बनारस सारा
ब्रजेश कुमार, प्रीति कुमारी, सत्यनारायण प्रसाद यादव, डॉक्टर सौरभ रोशन ठाकुर, मेरा वाला भी क्या रोशन कुमार, विजय कुमार ठाकुर, और निर्मल कुमार, विजय कुमार ठाकुर, निर्मल कुमार, आपका नाम बताइए। अच्छा, रोशन कुमार, डॉक्टर सौरभ रोशन ठाकुर, हो गया। और किन्हीं को देना है? सूर्यकांत, नहीं सर, नहीं सर, आपका फोटो नहीं खींचेगा, वो काम है। यस, हेलो विजय अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर के फैमिली मेंबर से किन्हीं को बोली आने के लिए। सर के लिए इसलिए मंदिर ढलना है सर को, मंदिर नहीं है सर, पूरा घाट वाट है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर के भाई कुछ सर के बारे में बताएं। सुबोध नाम है, सुबोध साहब। सर हम तो घर में बोलते हैं। सर हम यही है ना, कहाँ जा रहे हैं आप लोग के साथ? हाँ, सुबोध कुछ बोल रहा है। Thank you so much giving me privilege for to speak something. हम वैसा बात शेयर करेंगे जो आप लोग ना जानते। यस, उनका घर का नाम प्रमोद है। प्रमोद का मतलब समझते हैं? केवल आनंदित करने वाला। कोई भी फैमिली जो होता है उसका अप्स एंड डाउन्स होता है। हम लोग बड़े परिवार से हैं, जमींदारी बोलने से जमींदारी वाली प्रथा से हम लोग हैं। सारी जमींदारी खत्म हो गई, इन्होंने नया जमींदारी तैयार कर दिया। पूरा हमारे पूरे इंटायर फैमिली में ऐसा इन्होंने बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया। अभी बोल रहे थे कोई क्या फैमिली के साथ में शेयर करेंगे, एकदम गलत। हमेशा फैमिली के साथ में शेयर करते हैं, हमेशा हम लोग के साथ में रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग पहला लेते हैं, कुछ लेके उसमें से जो है हमको हार्ट अटैक आया। हम बहुत तड़प रहे थे हार्ट के पेन से। केवल इन्होंने हाथ भर रख दिया, ऐसे मैंने कहाँ दर्द हुई था, लोकल लैंग्वेज में भैया हमसे बोले कहाँ दर्द हुई था, हम हिया पड़ी। ऐसे ही से किए, लगा कि दर्द मेरा खत्म हो गया। ऐसा है ये।
हमारे पूरे परिवार को कहाँ से कहाँ। और सबसे बड़ा कष्ट का बात क्या होता है कि जब एक आदमी ऐसा होता है तो आपके परिवार में आपसे भी उम्मीद लोग लगाता है, तो हम तो बोल देते हैं भाई देव और दानव का कहानी है। थैंक यू सो मच। कंक्लूड करो। बेटी सर की बेटी आ रही है। Okay, sir, I think all family members should सब लोग आए, पोता भी है, नाती भी है। पापा जी हम लोग कहते हैं इनको। और आज मतलब वो बचपन की सारी यादें याद आ रही हैं। जब हम लोग छोटे थे 3 बजता था पापा आने वाले हैं, और कभी भी आज तक ऐसा नहीं लगा कि पापा आए हों और वो थके हुए हैं हम लोग के लिए। हम लोग वेट करते थे, स्कूल से आते थे पापा जी आ रहे हैं, बाहर हम लोग वेट करते थे, पापा आते, पापा जी हम लोग के लिए एक स्टोरी जरूर रखते थे बताने के लिए। पापा बस में आज आपके साथ क्या हुआ हम लोगों को बताइए। साथ में हम लोग लंच करते थे, उनके लिए वेट करते थे, जस्ट बिकॉज की द काइंड ऑफ एनर्जी दैट ही शोज। तो आज हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम है, और एक अच्छा भी टाइम है कि जब हम लोग घर जाएंगे तो पापा हमेशा हम लोग के लिए रहेंगे, और सारा टाइम पापा के साथ हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। हम लोग के पास मतलब मेरा भाई है, बड़े भैया है, सब कोई है। वी ऑल आर लाइक वी वांट टू ट्रैवल विद हिम, वी वांट टू स्पेंड ऑल आवर लाइफ विद हिम। तो जो आप लोग आज प्रोफेशनल फ्रंट पे जो आप लोग जो बोल रहे हैं, वो मतलब हम लोग हर दिन इनके साथ बिताते हैं, और हम लोग को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पापा हैं, और हम लोग ये मतलब बचपन से हम लोग देखे हैं। हम लोग के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, मतलब वी हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, बट पापा की तरफ से कभी भी आज तक कभी कुछ भी हम लोग नेगेटिव नहीं सुने हैं, और हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहे हैं जस्ट इनको देख के। और लाइफ में हम लोग बहुत कुछ आगे मतलब जो भी करते हैं, जितना भी एस्पिरेशंस है, वो शायद इट वाज that we have got it from the childhood that we have learned from him. So it's very emotional, exciting, and lot of things coming ahead because we are going to spend a lot of time with our पापा जी। और लखा तुमको कुछ बोलना है? मेरा नाम संकेत है। सब लोगों ने बहुत कुछ बोल ही दिया है ऑलरेडी। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कोई एक बंदा कोई ऐसा किया, तो लोग मेरे को बहुत ऐसे ट्विटर पे बहुत लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ऑफिस में भी 350 लोग हैं, सब लोग लुकअप करते हैं कि अरे ये है हमारा CEO है, ऐसे करके। मैं कभी भी ये बात बोलता नहीं पब्लिकली, आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ जो भी कुछ है पापा का ही दिया हुआ है। थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। दीदी ने स्टोरी बताया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दीदी नहीं बताई आप लोगों को। मेरी माँ गुजर गई थी जब मैं 1 साल का था, और पापा ने ही सारा हम लोग को बड़ा किया है। तो जितना भी पापा का जो भी कुछ हम लोग करते हैं, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब आप देख सकते हैं पापा भैया क्या है बता रहे थे, मेरे बारे में बता रहे थे, दीदी क्या है बता रहे थे। तो मतलब ये सब कुछ पापा मतलब हम लोग को पर्सनली, और आप लोग स्टूडेंट्स रहे हैं, हम लोग फर्स्ट हैंड स्टूडेंट्स रहे हैं, लाइक रियल लाइफ कि हाँ सब कुछ एक एक चीज़ सीखना, और हर तरह का चीज़ सीखना। मतलब माँ का प्यार देना अलग बात है, उसके अलावा ज़िंदगी का एक्सपीरियंसेस बताना, राइट फ्रॉम अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं सब लोग यही कहते हैं कि बहुत हम्बल इंसान है। यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप कहीं पे एक लेवल पे चले जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये तो थोड़ा सा ऐसा रूड है, बट हम लोग जब भी जाते हैं तो बोलते हैं हम्बल है। ये सबसे पहला चीज़ तो पापा से ही सीखा है कि मतलब पब्लिक कनेक्शन, पीपल कनेक्शन जिसको कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा से ही पापा सिखाएं। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, बट एक्साइटेड भी है हम लोग की। अभी इस्तांबुल पापा के साथ जाना है, दुबई जाना है, बहुत जगह प्लान है, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, और पापा के पास भी और ज़्यादा टाइम देगा और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आइए सर। कंटिन्यू है सर। सर वहाँ चाय दीजिए, कप में दीजिए, कप में। ठीक है बस ये ऑल द बेस्ट। यहाँ रख दीजिए, पीछे हो गया सर। यहाँ रख दीजिए।
बड़े भैया का भी डिमांड है। भाभी वैसे तो माइक देख के बहुत डर लगता है, लेकिन आज बोलने का मन कर रहा है। आप लोग कैसे जानना चाहते थे कि ये घर पे कैसे रहते हैं? जो मतलब इनके बच्चे जो बोलेंगे, इनके बेटा बेटी, वो अलग होगा। अच्छा चलिए। हम एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जाने एज ए स्टूडेंट इनसे मिले थे, मतलब ही इज आल्सो माय रिलेटिव, बट ही इज बीन अ टीचर फॉर मी, जिनसे हम कंप्यूटर सीखे थे सबसे पहले, और शायद कंप्यूटर ही वो चीज़ है जो कि आज हमको इस जगह पे लेके आया है जहाँ हम अपना आइडेंटिटी बना पाए हैं। एंड बीइंग अ स्टूडेंट I can feel like how inspirational he is for you guys, क्योंकि ये सेम चीज़ हम खुद भी फील करते हैं। He is one of the inspiration for me. I am sure कि ये thousands of people के inspiration रहे हैं और सारे लोग शायद ऐसा ही बनना चाहते हैं, और definitely हम भी बनना चाहते हैं। Like कि the calmness सबसे पहला चीज़, कि कोई भी सिचुएशन है, doesn't matter कि वो कितना difficult है, कितना कुछ भी है, he feels like he makes you feel calm कि आप रहो आराम से। जैसे कि रिसेंटली है कि मेरा एक छोटा सा बेटा है 4 साल का, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसके साथ, लेकिन जब भी पापा जी के साथ मतलब जब उनके यहाँ पे है और जब पापा जी रहते हैं तो वो उसको तुरंत में इतना ईजीली मैनेज कर लेते हैं, जैसे मेरे से क्यों नहीं होता है ये सब चीज़। एंड आई एम रियली हैप्पी कि अब पापा जी हम लोग के साथ रहने वाले हैं। एंड एक्चुअली नॉट जस्ट पापा जी, इनके बच्चे भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरा देवर मेरे लिए इंस्पिरेशन है। व्हाटएवर आई हैव लर्नड आई लर्नड ओनली विद दीस गाइस। और आई एम फीलिंग लाइक कि नाउ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरे बेटे को भी वही चीज़ मिलने वाला है। पापा जी मेरे बेटे को भी रेज करेंगे लाइक द वे ही डिड फॉर हिज चाइल्ड। सो बोलने गई थी कि रोने गई थी? बोलने के साथ अपनी भावनाओं को जाहिर करने आई थी। और मैम आप लोग कोई बोलना चाहेंगे? परिचय देना। Good evening everyone. Present on the right. मैं अनुराधा हूँ, बायोटेक में असिस्टेंट प्रोफेसर। सर को मैं पिछले कुछ सालों से जानती हूँ। डायरेक्टली सर बायोटेक से रिलेटेड नहीं है, बट सर हमें बायोटेक में हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है, टेक्निकली जब भी किसी प्रॉब्लम में हम लोग फंसे हैं, सबसे पहले वो सर के पास आते हैं। सर सपोज गजल सर के पास है तो सर सीधे बोलते हैं नहीं साहू सर से एक बार दिखा दो। साहू सर को तुमको ज़्यादा आइडिया होता है, साहू सर से आइडिया लो। तो जब भी हम लोग साहू सर के पास गए वो बिल्कुल उसको इजीली बहुत अच्छे लैंग्वेज में कोई भी चीज़ को हम लोग समझाते हैं, और वो हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल रहा है। आई डोंट नो कि आज के बाद पता नहीं वो गाइडेंस कामनेस से उस चीज़ को समझाना, वो उसको प्रेजेंट करना कौन सा है, आई डोंट नो। वी विल मिस यू सर। जोलॉजी से डॉक्टर एन झा सर हैं, तो हम सबको आग्रह करेंगे कि सर मंच पे आएं और आप लोग संबोधित करें। प्रॉक्टर भी है, प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर छोड़ दिया सर। हाँ अभी छोड़ा क्या? तो फिर के सर का नहीं होना मतलब है कि बाउंड्री आप संभाले। बोल दिए थे इनको। हाँ मालूम हो गया। परम आदरणीय हिर साहिबा और यहाँ
उपस्थित और टीचर्स और साहू जी, उनके बारे में आगे मैं कुछ बोलूँगा, उनके परिवार के सदस्य, सारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि साहू जी से मेरा संपर्क लगभग 10 सालों से, उससे पहले मैंने इन्हें जानता था, न ये मुझे जानते थे, लेकिन मगर अब ऐसा लगता है कि मेरा हमदम मिल गया। न तुम हम जाने न हम तुम्हें जाने, मगर ऐसा लगता है मेरा हमदम मिल गया। सवाल ये उठता है कि साहू जी के मुंह से मैंने कभी भी किसी का बुराई नहीं सुना। बहुत बड़ी बात है। इतना भीतर में रखने वाले लोग शायद विश्वविद्यालय प्रशासन में नजर नहीं आते। चूंकि ये इस नेचर के थे, मेरा भी कुछ ऐसा ही नेचर है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्षमता था और इसलिए इतना दिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन में रहे और बखूबी अपने कामों को किया। हम लोग बहुत सी विपत्तियों के दौर से गुजरा हूँ। एक पीरियड ऐसा था जिसमें हर दिन कुछ न कुछ विपत्तियां आती थी हम लोग के सामने। ये भी झेलते थे, मैं भी झेलता था और वो झेलने में इनकी जो मदद होती थी उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। टीचर ये अच्छे हैं, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इनको है। आज विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होगा डीओ का पोस्ट संभालने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कॉम्पिटेंट आदमी आज के परिप्रेक्ष्य में हमें नजर आ रहा है जो इस पोस्ट को बढ़िया ढंग से संभाले। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको देखने से ही प्रसन्नता आ जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस बात को माने या न माने, अभी तो इनकी डॉटर इन लॉ बोल रही थी और वो भाव विभोर हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि ऐसे ससुर हैं जिसके लिए पुतौह और जबरदस्ती लाके फिर उसी जगह पर बैठाया हम लोगों ने, और ये भी आज रिटायर कर रहे हैं। मैं इनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ और ये ऐसे ही स्वस्थ रहें, बीच बीच में हम लोग को गाइड करते रहें। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप पूरे परिवार के साथ खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए और ऐसे ही हम लोग के बीच कभी कभी आके अपने एरोमा को बिखेरते रहिए। धन्यवाद। और कार्यक्रम यहीं विराम लेंगे हम लोग यहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोग आए। आज का कार्यक्रम हंसते हंसते सब, जैसे शुरुआत हंसने के साथ हुआ था, जाना भी हंसने के साथ होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। डिस्टेंस वाला इधर प्रैक्टिकल सर सर हाँ सर डिस्टेंस वाला एक्सेल कल सर आपके साथ एक फोटो होना चाहिए। बड़ी आप इधर देखिए, इधर आओ सर, तो आपका भेंट करना चाह रहे हैं, सब बच्चों से भेंट करना चाह रहे हैं। आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। ये बड़ी बेटी। अच्छा 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 हाँ, चलो बेटा ठीक है। बच्चे की माँ है। कहाँ है बच्चा सब? ये सब छोटा बेटा है। अच्छा अच्छा। बेंगलोर में ही है।
अच्छा अच्छा वो सर मेरा दम आप मेघा ये हमारी आ रहे हैं ये सर मेरे छोटे हाँ आ रहे हैं हाँ सर से तुम मिल रहा चेहरा अरे फोटो ऐसा खींचिएगा जिसमें मुंडी जिसका हो उसी का पैर भी हो। अरे हमारे यहाँ ऐसे भी फोटोग्राफर हैं, किसी का मुंडी किसी का पैर जोड़ देते। आना तुम लोग भी आना आ जाओ ना साधना आना आ जाओ प्रीति आओ देखो सब आना चाहिए कटना नहीं चाहिए आओ साधना क्या हो गया कटरा है श्रीकांत अच्छा तुम भी श्रीकांत आओ अनिल आओ ना आ जाओ सर के साथ खेलो ना यहाँ मेरे पास यहाँ कैंसर थे ना लास्ट दिन था डिस्टेंस का प्रैक्टिकल था 3 दिन था 4 दिन था एक मिनट इसमें डाल लो ठीक है साहू जी